عثمان نے فون کیا تو علی نے جذباتیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے سب کہہ سنایا۔ طاہرہ بیگم کی یہ حرکت اور زرش کی منگنی سمیت سب۔ عثمان کتنی دیر تک گمسم رہے۔ اندرونی طور پر وہ شکست و ریغ سے دوچار ہو گئے۔ اگلے ہی دن انہوں نے سیدھے کراچی کی پرواز پکڑی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ سعید صاحب اور سمان ابھی گھر لوٹے ہی تھے، اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ طاہرہ کچن میں اور علی ٹی وی لاؤنج کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ فرح کمرے میں تھی۔ واچ مین نے گیٹ کھولا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوئے تھے۔ پورے گھر کی فضا میں خاموشی کا ایک عجب سا سکوت تھا جو چھایا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ لاؤنج میں سیدھے آئے کیونکہ ٹی وی کی ہلکی آواز نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ علی نے پلٹ کر دیکھا اور عثمان احمد کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بھائی جان؟ حسرت آمیز تحیر سے وہ فوراً ان کے کندھے سے آ لگا تھا۔ کیسے ہو؟ محبت سے بھائی کو خود سے جدا کر کے پوچھا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ ٹھیک ہوں۔ آپ اس قدر اچانک؟ تمہیں ملنے چلا آیا۔ باقی سب کدھر ہیں؟ کسی کو بھی نہ پا کر استفسار کیا۔ علی کے چہرے پر تلخی سی چھا گئی۔ کتنے دن ہو گئے تھے زرش کی منگنی ہوئے، مگر لگتا تھا ان کے گھر کوئی موت ہو گئی تھی۔ ہر کوئی اپنی گنبد میں محصور ہو کر رہ گیا تھا۔ عجیب ماتمی سا ماحول ہو چکا تھا اس گھر کا۔ ایسے میں علی کا جی چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر اندر کا غبار نکالے یا پھر اس ماتمی ماحول سے کہیں فرار حاصل کر لے، بھاگ جائے کہ اس گھر کے مکینوں کو اپنے رویوں کا احساس ہو۔ آپ بیٹھیں، میں سب کو اطلاع دیتا ہوں۔ وہ اندر چلا گیا تھا۔ عثمان کی آمد سب کے لیے ایک خوشگوار جھونکا ثابت ہوئی تھی جو سبھی کمروں سے نکل آئے تھے۔ اگلے 5 منٹوں میں سبھی عثمان کے گرد جمع ہوئے تھے۔ سعید احمد بیٹے کو سامنے دیکھ کر خوش ہوئے۔ سمان بھی کتنے دنوں کی قید سے نکلا تھا۔ فرح بھی چند دنوں سے صرف کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بھی بھائی سے جڑی بیٹھی تھی۔ اور طاہرہ بیگم جو خوش تھی مگر ایک ندامت لیے انہیں زیادہ دیر تک عثمان کے سامنے ٹھہرنے نہیں دیا تھا۔ سلام دعا کے بعد عثمان دیگر لوگوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ انہیں یوں ہی لگا کہ عثمان نے جیسے نظر انداز کیا ہو۔ نظر انداز تو وہ ان کو بہت پہلے سے کرتا آ رہا تھا، مگر شادی کے بعد وہ ان سے کچھ حد تک بے تکلف ہوا تھا۔ لیکن اس کی یہ سرد مہری انہیں بڑی شدت سے محسوس ہوئی۔ وہ خاموشی سے واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ عثمان کے لیے کھانے پر خصوصی اہتمام بھی کروانا تھا۔ انہوں نے ماجدہ کو خاص ہدایت دی اور اپنی توجہ رات کے مینیو پر لگا لی تھی۔ گھر کا کوئی بھی فرد ان سے کلام نہیں کرتا تھا۔ سعید احمد، سمان، علی اور فرح چاروں ہی ان کو نظر انداز کر رہے تھے، مگر اب عثمان کا رویہ ان کے دل پر تازیانے کی مانند لگا تھا۔ کھانا تیار کر کے میز سجا کر انہوں نے ماجدہ کو سب کو بلانے کے لیے بھیج دیا تھا، ورنہ کتنے دن ہو گئے تھے ان کے گھر میں سب نے مل کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ آج کل وہ ماجدہ کے ذریعے ہی سب کو پیغامات کا فریضہ سر انجام دے رہی تھیں۔ کھانا بہت خاموشی سے کھایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد فرح نے سب کے لیے چائے تیار کی تھی۔ رات گئے تک باتیں ہوتی رہی تھیں، پھر سب ہی سونے کے لیے چل دیے۔ عثمان کا کمرہ سمان کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ وہ اپنے کمروں میں جانے کے لیے ایک ساتھ ہی اٹھے تھے۔ عثمان سمان کے کمرے میں چلے آئے تھے۔ وہ سارے حالات سے مکمل آگاہی چاہتے تھے۔ ابھی تک اس موضوع سے متعلق کسی کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا تھا۔ عثمان احمد منتظر تھے کہ کوئی خود ہی موضوع چھیڑ دے، مگر اب سب جس طرح اپنے کمروں کو روانہ ہوئے تھے وہ مایوس ہو کر سمان احمد سے ہی سارے حالات جاننے پر مجبور ہو گئے تھے۔ سمان عثمان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران تو ہوا تھا، پھر کپڑے چینج کر کے آیا تو عثمان بڑے ریلیکس موڈ میں ان کے بستر پر دراز تھے۔ نیند نہیں آ رہی کیا؟ سمان احمد نے مسکرا کر پوچھا تو عثمان احمد نے بغور دیکھا۔ چہرے کے تاثرات اور آواز کا تاثر بہت نارمل تھا۔ میں جس گرداب میں الجھا ہوا ہوں اب شاید ہی نیند ہے۔ کل بھی نہ سو پایا تھا، آج تو کانٹوں پر لوٹ رہا ہوں۔ بہت سنجیدگی سے انہوں نے لب کشائی کی تھی۔ ایک پل کو سمان کی پوری ذات ہل کر رہ گئی تھی، مگر اگلے ہی پل خود کو سنبھال کر لبوں پر مسکراہٹ سجا لی۔ خیریت؟ ایسی کیا بات ہو گئی؟ ان کے ساتھ ہی بستر پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم نہیں جانتے میں کس وجہ سے پریشان ہوں؟ انہوں نے براہ راست سمان احمد کی نگاہوں میں جھانکا۔ میں حیران ہوں، جس وجہ سے میں بھاگم بھاگ یہاں آیا ہوں سبھی اسی موضوع پر گفتگو کرنے سے کترا رہے ہیں۔ میں دور ضرور ہوا ہوں، مگر تم لوگوں نے تو مجھ سے بالکل ہی خیریت اور اجنبیت کا مظاہرہ کر کے دیا ہے۔ کیا کبھی ہماری خوشیاں علیحدہ رہی ہیں جو ان دکھ کے لمحوں میں مجھ سے کوئی اپنا دکھ شیئر کرنے کو مجھے قابل نہیں جان رہا؟ اتنے دن گزر گئے سانحے کو اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ بہت سنجیدگی سے انہوں نے کہا تو سمان نے لب بھینچ لیے۔ سانحہ تو آتے ہی گزر جانے کے لیے ہے، پھر آپ سے کیا ذکر کرتے؟ ٹوٹی پھوٹی عمارتوں کی زیارت کے سوا اب یہاں بچا ہی کیا ہے؟ بہت دکھ سے عثمان احمد نے چھوٹے بھائی کو دیکھا۔ مجھے ساری تفصیل بتاؤ، میں امی ابو اور چچا جان سب سے بات کروں گا۔
اس طرح زندگیوں سے کھیلنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ امی نے بہت کچھ کر لیا، اب ان کا اختیار ختم ہونا چاہیے۔ ایک ہی ڈرامہ نئے نئے انداز اور نئے طریقے سے ہر بار دہرایا جائے، کیوں؟ کندھے پر ہاتھ رکھ کر عثمان نے تسلی دیتے ہوئے کہا تو سمان کو اپنے اعصاب، اپنا حوصلہ تنگ پڑتا محسوس ہوا۔ سمان احمد برداشت کرتے کرتے تھکنے لگا تھا۔ وہ بھی دل کی بھڑاس اس نکالنے کو ایک کندھا چاہتا تھا۔ سمان نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو دل پر بوجھ بن گیا تھا، وہ سب کچھ جو عثمان احمد علی کی زبانی بھی سن چکے تھے، وہ ساری تکلیفیں جو طاہرہ بیگم کے ایک حسد کا نتیجہ تھی۔ عثمان احمد نے بہت تحمل سے سب کچھ سنا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اس قدر ضلالت کے بعد تو میں کبھی بھی زرش کے لیے آمادہ ہونا گوارا نہ کرتا۔ ہاں، چچی جان کا اقدام بھی قابل تحسین ہے۔ وقت و حالات کا یہی تقاضا تھا۔ ہم لوگ ان سے شکوے یا اعتراض کا حق نہیں رکھتے۔ ابو نے بتایا تھا کہ چچی جان نے انہیں اپنے ہاں آنے سے صاف منع کر دیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں بہت کچھ بدل چکا ہے، اور وہ جو نہیں بدلا وہ تبدیلی کے مراحل میں ہے۔ ایسے میں آپ کا کسی سے بھی اس سلسلے میں کچھ بھی کہنا، سمجھانا، بجھانا بے معنی ہوگا۔ ہاں، امی ابو کو سمجھا سکتے ہیں کہ دونوں اب اپنی عمر کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اپنی جذباتیت پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ آپ کے بعد میں، میرے بعد فرح، کیا ان کی ساری اولاد ان کی نام نہاد نفرت کی بھینٹ چڑھتی رہے گی؟ کبھی تو ہو کہ ہم بھی ان کو احساس دلائیں۔ عثمان احمد کی بات پر کئی ثانیہ تک ساکن رہ گیا تھا۔ ہاں، میں بھی اب سوچ رہا ہوں اس سارے معاملے کا بھی ختم ہونا چاہیے۔ میری دفعہ تو بات کچھ بھی نہ تھی، پھر بھی چچا جان نے جس طرح یہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کیا تھا اس نے حالات کو تھوڑا بہت سہارا دیا تھا، مگر اب تو کنڈیشن بہت سیریس ہے۔ بات خاندانی تنازع کی نہیں ہے، ہمارے گھر کے بکھرے شیرازے کی ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک ہم ایک محرومی کے ساتھ جیتے آ رہے ہیں، مگر کوئی فیصلہ، کوئی اختتام ہونے میں ہی نہیں آ رہا۔ اب لازمی طور پر کوئی واضح حل ہو جانا چاہیے۔ عثمان احمد کا لہجہ حتمی تھا۔ سمان خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ میں کل چچی جان کے ہاں ضرور جاؤں گا، پھوپھو کے ہاں بھی چکر لگاؤں گا۔ یہ صرف خاندانی بقا اور غیریت کی ہی نہیں بلکہ زندگیوں کی بات ہے۔ اس دفعہ کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، میں بات کروں گا۔ پلیز عثمان بھائی، پہلے ہی بہت تماشا بن چکا ہے ہمارا، اب مزید کچھ نہیں۔ آپ کس سے شکوہ کریں گے جبکہ اس سارے خرابے کی اصل وجہ بلکہ بنیاد ہمارا اپنا ہی گھر ہے؟ میں تو کسی کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہا۔ امی کو الزام نہیں دے رہا، مگر یہ سچ ہے، یہ سب ان کا ہی کیا دھرا ہے۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ وہ کوئی ایسا گیم بھی کھیل سکتی ہیں۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں کبھی امی ابو کے سامنے زرش کا نام نہ لیتا۔ میں ہر طرح کے حق سے دستبردار ہونا زیادہ بہتر سمجھتا۔ مجھے ابھی تک یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ جب سارے حالات میرے سامنے تھے تو پھر میں کیوں زرش کے سامنے بھرم نہ رکھ پایا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا سب حالات بس میں کر لوں گا، مگر وہ جو بس میں تھے وہ حالات بھی اختیار سے ایسے نکلے کہ میں ششدر رہتا دیکھتا چلا گیا۔ میں جھوٹا اور ناکام ثابت ہی نہ ہوا، اس کی ذلت کا بھی باعث بنا۔ عثمان احمد نے بے چارگی سے بھائی کو دیکھا۔ سمان احمد کا دکھ دل پر بوجھ بنتا چلا گیا۔ آپ امی ابو سے بات کریں، مگر اب اس تذکرے میں زرش یا چچی وغیرہ کا ذکر نہ ہو۔ خواب دیکھنے اور اچھی امید رکھنے کا حق ہر انسان کو ہے، ضروری نہیں ہر خواب پورا بھی ہو۔ حقیقت پسندی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ صرف امی ابو کے درمیان تنازع کو سامنے لانے کی کوشش کریں۔ وقت و حالات نے بہت کچھ باور کروایا ہے، مگر اس کے باوجود ہم خاموش ہیں تو کیوں؟ صرف اپنے والدین کا بھرم رکھنے کے لیے۔ امی نے اتنا کچھ کر لیا، میں نے کنارہ کشی اختیار کر لی کہ اب کوئی فائدہ نہیں، کوئی راہ نہیں۔ ہاں، آپ اپنے گھر کی ابتدا کر چکے ہیں۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں گے یا امی ابو کو سمجھائیں گے تو شاید انہیں برا نہ لگے۔ ہم میں سے کوئی بھی ان سے جو بھی بات چھیڑے گا امی اپنی توہین سمجھیں گی اور بجائے اصل صورتحال سمجھنے کے چچی لوگوں کا قصور قرار دیں گی۔ ہاں، میں بھی اب یہی سوچ رہا ہوں۔ امی ابو نے کچھ نہ بتایا تو پھر مجھے کسی اور سے اصل حقائق کی نشاندہی کروانا پڑے گی۔ پرسوچ انداز میں عثمان احمد نے سر ہلایا تھا۔ اس حادثے کے بعد تمہاری زرش سے ملاقات ہوئی، اس کا تمہارے لیے کیا رد عمل ہے؟ امی کا لگایا الزام تمہاری ذات کے متعلق اس کی نگاہوں میں کوئی نہ کوئی احساس تو بیدار کر گیا ہوگا۔ سمان احمد تلخی سے ہنس دیا۔ نہیں، میرا اس دن کے بعد اس سے سامنا نہیں ہوا۔ میرا تو یہ سوچ کر ہی دماغ پھٹنے لگتا ہے کہ اگر اس سے کبھی سامنا ہو گیا اور اس نے اپنے ساتھ کی جانے والی زیادتی کا حساب مانگ لیا تو میں کیا کروں گا؟ یقین مانے عثمان بھائی، میں سوچ سوچ کے ہارا ہوں۔ میری اذیت کا کوئی عالم نہیں۔ بڑی راتیں ہو گئی ہیں مجھے نیند لیے ہوئے۔ آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہ سارا گھٹیا ڈرامہ میری یہ نگاہوں میں آ کر سارا سکون اطمینان درہم برہم کر جاتا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی میں امی یا قیصرہ خالہ کی کسی ایسے سازش کا شکار بھی ہو جاؤں گا۔ خود سے بڑھ کر اپنے جذبوں پر اعتماد تھا، مگر اب کیا ہوا؟
ہر رات کانٹوں پر گھسیٹ آئی ہے، کسی پل قرار نہیں۔ شدت اضطراب کے اس مظاہرے نے عثمان احمد کو سختی سے لب دانتوں تلے دبانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک پل کو جی چاہتا ہے کہ بس حد سے گزر جاؤں، امی سے حساب مانگ لوں یا پھر ہمیشہ کے لیے خود کو ان کی نگاہوں سے دور کر لوں۔ جذباتیت کی انتہا تھی۔ عثمان احمد نے فوراً کندھے ہاتھ رکھ کر ضبط کرنے کا اشارہ دیا تھا، مگر میں بے بس ہوں۔ دور جانے لگتا ہوں تو سب کے چہرے نگاہوں میں آ جاتے ہیں، ابو، علی اور سب سے بڑھ کر فرح۔ وہ تو مر جائے گی۔ کاش امی سمجھ سکتی۔ وہ اپنی نفرت میں اپنی اولاد کو، اپنی کل پونجی کو آگ لگا رہی ہیں، اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دل کی بھڑاس نکالتے عثمان احمد کی آنکھوں میں پردہ سا حائل ہو گیا تھا۔ شارق زمان جو اسے وہاں رات چھوڑنے پر ہی سرے سے راضی نہ تھا، وہ اسے چھوڑ گیا بھی تو پلٹ کر خبر نہ لی تھی۔ رات جو گزری سو گزری، مزید 4 دن گزر گئے۔ 5ویں روز رفت باجی رضیہ چچی کے ہمراہ اسے لینے آ گئی۔ شارق کے میگزین میں اعلیٰ حکام سے متعلق کچھ خصوصی رپورٹ شائع ہوئی تھی، جس نے پچھلے دنوں ماضی کی گرما گرمی دکھائی تھی۔ نتیجتاً اس کے میگزین کے خلاف کارروائی کی گئی تھی۔ بات میگزین بند کرنے تک پہنچ گئی تھی۔ شارق زمان انہی جھمیلوں میں الجھا ہوا تھا۔ 2 دن سے وہ اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ رفت باجی اور چچی اسے لینے آئیں تو خالدہ بیگم نے بغیر کچھ کہے نویرہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ در حقیقت سبھی شارق کی ان 3-4 دنوں کی نویرہ سے متعلق لاتعلقی سے خائف ہو گئے تھے۔ نویرہ خود بھی پریشان ہوئی تھی۔ کہاں وہ اسے چھوڑنے پر راضی نہ تھا، اور جب شاپنگ کے بعد اسے باہر گیٹ سے ہی اتار کر گیا تو پلٹ کر خبر نہ لی تھی۔ وہ خاموشی سے رفت باجی کے ہمراہ چلی آئی تھی۔ رات کو فاروق چچا آئے تو گھر میں کچھ رونق ہو گئی تھی۔ فاروق چچا اور چچی کے چلے جانے کے بعد وہ خالہ امی کے پاس ہی بیٹھی رہی تھی۔ جب وہ سو گئی تو رفت باجی نے اسے بھی کمرے میں بھیج دیا۔ کمرے میں آ کر اس کے اندر عجیب بے چینی کروٹ لینے لگی۔ یہ زندگی، یہ لوگ، یہ گھر، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی اس رخ سے بھی آزمائے گی۔ نواز کے انکار نے اس کے دل میں کوئی جذبہ نہیں رہنے دیا تھا کہ وہ اسے اچھے لفظوں میں یاد رکھتی، مگر وہ شخص تنہائی میں اچانک اس کے تصور میں کبھی ضرور آتا تھا، اور نویرہ ہر بار چٹک جاتی تھی، بری طرح تکلیف سے دوچار ہوتی تھی۔ نواز فاروق، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ تم میری پارسائی پر ریپ ہونے کا مہر ثبت کرتے؟ تم 2 مردوں نے مجھے کاٹ کا الو سمجھ لیا تھا۔ کاش تم ایک دفعہ آ کر مجھ سے وضاحت تو مانگتے، اپنی تنگ نظری کا ثبوت فراہم کرتے۔ بزلوں کی طرح کبھی نہ بھاگتے تو میں خود تم سے شادی سے انکار کرتی۔ اس وقت بھی کمرے کی تنہائی میں اسے یہ 2 شخص بری طرح اذیت میں مبتلا کر گئے تھے۔ شارق کی طرف تو نہ جانے کون کون سے حساب نکلتے تھے، مگر نواز کی پسپائی نے بھی اسے مجبور کر دیا تھا کہ اگر کبھی سامنا ہوا تو وہ اسے بری طرح نفرت سے دھتکار دے گی۔ عشاء کی نماز ادا کر کے وہ لیٹ گئی تھی۔ فون کی تیز بیپ نے اسے گہری نیند سے جگا دیا تھا۔ اسے ناگواری سے کانوں پر ہاتھ رکھے دوبارہ سونا چاہا، مگر اب شاید یہ ممکن نہ تھا۔ جھنجھلا کر اس نے پلکیں وا کی تھیں۔ کمرے میں تیز روشنی تھی اور موبائل اس کے سرہانے پڑا مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر غصے سے موبائل ہاتھ میں لے کر پہلے اس کا گلا گھونٹا، پھر اطراف میں نگاہ کی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، البتہ ڈریسنگ روم کا دروازہ بند تھا۔ موبائل کو گھورتے اس نے غضب بھری نگاہ بند دروازے پر ڈالی۔ یقیناً شارق زمان آ چکا تھا۔ اس سے اپنا گہری نیند سے اٹھایا جانا بڑا برا لگا۔ جی چاہا موبائل اٹھا کر دیوار کے ساتھ دے مارے۔ وہ اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نویرہ لب بھینچے دروازے کو گھور رہی تھی کہ ایک خیال سے فوراً چونکی۔ اس کا چہرہ فوراً چمک اٹھا تھا، یوں جیسے قیدی کو قید خانے میں روشنی کی کرن دکھائی دے گئی ہو۔ شارق زمان کسی بھی وقت کمرے میں آ سکتا تھا۔ اس نے فوراً سر تکیے سے نہ ہٹا کر بستر کے گدے سے شیشی برآمد کی تھی۔ وہ اس شخص کی فتح مندی کا کوئی اور موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اس شخص کو ایسے ہی سلگانا چاہتی تھی جیسے وہ خود سلگ رہی تھی۔ شیشی کھولے اس نے کمرے میں نگاہ ڈالی، گلاس کہیں بھی نہ تھا۔ وہ تیزی سے بستر سے اتر کر ننگے پاؤں بغیر دوپٹے کے غسل خانے کی طرف بھاگی تھی۔ اس نے گولی منہ میں رکھی اور نل کھول کر ہتھیلی کی مدد سے پانی پیتے ہوئے گولی نگل لی۔ اٹھ گئی تو وہ آستین سے منہ صاف کر رہی تھی۔ عقب میں آواز سن کر پلٹی۔ وہ باتھ روم کے دروازے پر سلیپنگ سوٹ میں ملبوس کھڑا بڑی وارفتہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ نویرہ جل بھن گئی۔ ظاہر ہے ایسے والیوم اگر مردوں کے سرہانے بھی بجائے جائے نا تو وہ بھی قبر سے اٹھ بیٹھے۔ کافی جل کا جواب ملا تھا۔ شارق زمان جو بڑی دلچسپی سے اس کے بغیر دوپٹے کے خوبصورت لباس میں ملبوس وجود کو دیکھ رہا تھا، کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ نویرہ شارق کی نگاہوں سے پل میں کنفیوز ہونے لگی۔ اچھا راستہ دیں۔ وہ دروازے پر اس طرح استادہ تھا کہ جب تک وہ ایک طرف نہ ہوتا وہ نکلتی ہی نہ۔ شارق نے ایک طرف ہو کر اسے راستہ دیا تو وہ باہر نکل آئی۔ اس سے پہلے کہ بستر کی طرف آتی شارق نے بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ جھنجھلا گئی تو شارق ہنس دیا۔
मुसीबत नहीं मादाम, इसे मोहब्बत कहते हैं। पूरे 5 दिन की छूट दी है मैंने तुम्हें, और अपने ऊपर जो जब्त किया है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। इधर तो चेहरा करो, बगौर देख तूनू, ये वही मेरी नवेरा है या बदल गई है? कमर के गिर्द बाजू हमाइल करके चेहरा अपनी तरफ फेर कर वो मखमूर से लहजे में कह रहा था। नवेरा के हाथ पाँव फूलने लगे थे। कुर्बत बला की थी और जब्त। मैं कहीं भागी नहीं जा रही। अगर भागना ही होता तो इस अकूबत खाने में आती ही क्यों? छोड़ दे मुझे, आराम से बात करे। कुछ गोली का असर हो रहा था और कुछ शारिक जुबान की कुर्बत का। उसने पूरा जोर लगाकर अपना आप छुड़वा लिया। शारिक जब घर में दाखिल हुआ था तो रिफत बाजी ने बता दिया था कि वो और चची जाकर नवेरा को ले आई हैं। उसे एक बोनस सकून मिला था। जी चाहा था कि कमरे में दाखिल होते ही पिछले 5 दिनों से बांधे बंद खोल दे, मगर नवेरा की नींद ने उसे जब्त करने पर मजबूर कर दिया था। और अब उसका टोकना। वो दुपट्टा लेकर बिस्तर पर बैठ गई थी। वो नवेरा का नखरा बर्दाश्त कर गया। इतना कुछ करने के बाद तो बर्दाश्त करना ही था। इस्लामाबाद गए थे। सर भारी हो रहा था। नींद का गलबा पूरी तरह अपनी लपेट में ले रहा था, मगर उसकी पूरी कोशिश थी कि शारिक जुमान की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल न होने दे। शारिक आईने के सामने आ खड़ा हुआ। क्यों? वो बाल बना रहा था। ब्रश रखकर परफ्यूम स्प्रे करने लगा। उससे जल्दी से दूसरा सवाल पूछा कि कहीं उसकी तवज्जो फिर उसकी तरफ मबजूल न हो जाए। कुछ मैगजीन प्रॉब्लम्स थी। छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ कैसे गुजारे ये दिन अपनी अम्मा के यहाँ? परफ्यूम की शीशी वापस रखकर वो उसके पास ही बिस्तर पर आ बैठा था। नींद का गलबा ऐसा था कि वो बमुश्किल अपने आप को संभाले हुई थी। गोली जोर असर थी। जी चाह रहा था कि फौरन पड़ जाए। शारिक के करीब बैठने पर उसने बेबसी से देखा। काश वो उस शख्स को बता सकती कि उसकी कुर्बत उसे किस अजियत में मुब्तला कर देती थी। ठीक ही थे, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो थोड़ा सा दूसरी तरफ खिसक कर लेटी तो शारिक ने ताज्जुब से उसे देखा। खैरियत? वो कंबल सर पर तानने ही वाली थी जब शारिक ने संजीदगी से कंबल का कोना थाम लिया। वो झुंझला कर रह गई। हाँ, नींद आ रही है, सोने दे मुझे। बेबसी की इंतहा थी। तुम ऐसे कैसे सो सकती हो? नवीरा करवट बदल रही थी जब उसने फौरन उसका रुख अपनी तरफ कर लिया था। क्यों नहीं सो सकती? छोड़े मुझे। उसने बेबसी से उसका हाथ झटक दिया था। नवेरा? वो एक दो पल देखता रहा। यह झटका बड़ा शदीद था। मैंने तुम्हें इतने दिन इसीलिए दिए थे कि इन 4-5 दिनों में तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हो गया होगा। उसने गुस्से से कहा तो नवेरा ने बमुश्किल आंखें खोली। मेरा दिमाग कभी ख़राब नहीं था शारिक साहब। वो नींद से बोझल आंखें लिए तंजिया हंसी। आवाज़ की लड़खड़ाहट बड़ी वाज़ेह थी। हाँ, इन दिनों में यह ज़रूर हुआ है कि मुझे ज़िंदगी का लायमल तरतीब देने को कुछ वक्त मिल गया था। मुझे तंग न करें, आराम से सो जाएं। इसी में आपकी भी फलाह है और मेरी भी। आखिर में उसका लहजा इतना मुधम हो गया था कि अगर शारिक पूरी तरह मुतवज्जे न होता तो शायद सुन ही न पाता। मैं आपके पास हूँ, खुशी से या नाखुशी से। अगर मुझे आपसे भागना ही होता तो कभी यहाँ ना आती। मेरी बदकिस्मती कि हर बार मुझे आपके सामने लाती है, और अपनी किस्मत से समझौता मैं कर चुकी हूँ। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें फिलहाल। आपका कुछ नहीं जाएगा, मगर मुझे अपनी निस्वानियत की धज्जियाँ बिखेरने वाले से घिन आती है जब वो मेरे किरदार की गवाही भी देता है और इस पर इल्ज़ाम लगाने से भी नहीं चूकता। अपने ज़मीर को सुलाने में कुछ वक्त तो लगेगा। जब मैं समझौता कर रही हूँ तो फिर आप भी सब्र करें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आपकी बीवी बन चुकी हूँ तो सारी उम्र मैं ही रहूँगी। अभी सोने दें, जाएं, आप भी सो जाएं। तंग करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। आवाज़ मुद्दम होते होते आखिर में बुरबुराहट ही बाकी थी। शारिक जुमान गुस्से से घूर गया। जी चाहा कि उसे झिंझोड़ कर बिठा दे। उसका एक एक लफ्ज़ उसकी समातों में साफ उतरा था। उसकी आवाज़ की लड़खड़ाहट उसे अपनी जगह मुंजमद कर गई थी। नवेरा की आंखों में डोलता नींद से ज़्यादा मदहोशी का खुमार उसे साकिन कर गया था। नवेरा इस हद तक चली जाएगी उसे गुमान भी न था। शादी की रात आंखों में समाई तो उसने मुठियां भींच ली। नवेरा की फरार के पीछे मौजूद रद्द अमल उसके वहम गुमान में भी न था। आज कई दिनों बाद सुमान अहमद ने उसी घर के सामने गाड़ी रोकी थी जहां कभी आने से पहले उसको सोचना नहीं पड़ता था। इस रास्ते की तरफ कदम खुद ब खुद उठते चले जाते थे। एतमाद और यकीन से दिल मामूर होता तो सर भी एक जज्बे और एहसास से उठा होता था, जबकि आज ऐसा कुछ भी ना था। यहाँ तक आए हो तो थोड़ी सी हिम्मत मजीद कर लो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस घर से हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। अपने आप को मजबूत करो यार। उस्मान ने सुमान अहमद के कंधे पर थपकी दी तो वो लब भींच कर रह गया। कभी ना कभी तो इस सारी सूरत हाल का सामना करना ही था। चौकीदार हमेशा की तरह सुमान को देखकर गेट खोल चुका था। सुमान ने खामोशी से गाड़ी आगे बढ़ा ली।
गाड़ी की आवाज सुनकर शाइस्ता बाहर निकल आई थी, लेकिन जब सुमान अहमद की गाड़ी को रुकते देखा तो वो वहीं सीढ़ियों पर ही खड़ी रह गई। दिल में दर्द की शदीद लहर थी। उन्हें लगा उनका पूरा वजूद डोल गया हो। जब सुमान अहमद के साथ उस्मान को भी गाड़ी से निकलते देखा तो वो कई सानिये बेहिस्सो हरकत खड़ी रह गई, हत्ता के दोनों सुस्रवी से चलते हुए उनके सामने आ खड़े हुए थे। अस्सलामु अलैकुम। उनका दिल फोड़े की तरह दुखने लगा था। उस्मान। उन्होंने वालेहानापन में उस्मान का चेहरा थामकर फराक पेशानी चूम ली थी। वो कैसे बताती कि कैसे ये उन दोनों ने ऐसे आलम में उनकी जज्बाती तस्कीन का सामान फराहम किया था, जबकि उनकी ममता इम्तिहान की जद पर थी। हादिया तो बाद में पैदा हुई थी। ये दोनों ही तो थे जिन्होंने उनकी सूनी गोद को आबाद किया था। उन्होंने उनको हकीकी बेटों से बढ़कर चाहा था। उनके दिल में इन दोनों के लिए कैसे कैसे अरमान पल रहे थे। वक्त ने बस एक आन में सब कुछ खाकिस्तर कर दिया था। उस्मान की पेशानी चूम कर वो रो रही थी। उस्मान ने बहुत जब्त से उन्हें साथ लगाकर जज्बाती सहारा दिया था। सुमान अहमद लब भींचे खड़े सारे मंजर को देख रहा था। शाइस्ता बेगम तो उस्मान के कुशादा सीने पर सर रखकर यूं बिखरी थी जैसे तूफान के बाद नुकसान पर मातम हर माँ बेटे के सामने गिरियावजारी करती है। उस्मान खामोशी से उन्हें सहारा दिए लाउंज में चले आए थे। बड़ी देर कर दी उस्मान बेटा आने में। यहाँ सब कुछ बिखर चुका है, रिश्ते, नाते, एतमाद, सब कुछ। उस्मान ने उन्हें खामोशी से सोफे पर बैठाया तो सुमान अहमद ने बेबसी से देखा। वो जानता था ऐसी ही सूरत हाल होगी, इसीलिए वो फरार चाह रहा था, मगर उस्मान के इसरार पर यहाँ आना ही पड़ा। यहाँ तो सब कुछ बहुत पहले से बिखर चुका था। अब तो खाली खोली इमारत जमीन बोस होती थी। प्लीज हौसला करें। उस्मान ने पास बैठकर तसल्ली दी तो उन्होंने दुपट्टे के पल्लू से आंसू साफ करते हुए सर हिलाया। हाँ, अब तो हौसला करना ही है। एतमाद बड़ी मुश्किलों से कायम होता है और रिश्ते बनाने में सारी जिंदगी लगा दी जाए तो जुड़ते हैं, मगर एक पल की लफ्जिश तोड़ने में देर नहीं लगाते। मेरा तो घर बिखर का सिमटा है। खुदा न खासा तुम्हारे चचा को कुछ हो जाता तो हम तो गोया जीते जी ही मर गए थे। गुजरे दिनों पर वो पहली दफा किसी के सामने रो रही थी, यूं आपदीदा हो रही थी। फिर जब से आंसू साफ करके सुमान को देखा। सुमान अहमद खामोश मेहर बलब कदरे फासले पर इस्तादा था। अस्पताल में एक दो मरतबा के बाद सुमान से दोबारा सामना नहीं हुआ था और इसलिए उनके दिल से हुक उठे। ताहिरा की जिद ने कैसी भरपूर जवानियों को खा लिया था। ऐसे शेर जवान बेटों पर तो फख्र किया जाता है, मानो एतमाद दिया जाता है, जबकि ताहिरा अपनी ही नादानी में अपनी ही आशियानी को बिखेर बैठी है। जज्बों से भरपूर दिल वीरान कर दिए थे। उनका दिल फिर भरने लगा। इधर आओ सुमान, खड़े क्यों हो? उन्होंने खुद को संभाल कर सुमान को देखा तो सुमान अहमद आहिस्तगी से उनके पास ही घुटनों के बल कालीन पर टिक गया था। अजीब से पुशमर्दगी से शाइस्ता के घुटनों पर हाथ रखे थे। आई एम सॉरी चची जान। अंदर का कर्ब सुमान अहमद के लहजे में बिखर कर शाइस्ता बेगम का दिल चीर गया था। मैं आपका गुनहगार हूँ, आप मुझे इल्ज़ाम दें, बुरा बरा कहें, हक रखती हैं, सुमान जब से कह रहा था। उन्होंने तड़प कर सुमान का चेहरा दोनों हाथों में थाम कर सर चूम लिया। नहीं सुमान, ये शायद सब किस्मत में था, तुम्हारा क्या कसूर? ख्वाहिशें पालने, ख्वाब देखने का तो हर किसी को हक हासिल है। फिर तुमने कौन सी नाजायज राह इख्तियार की थी? ये दर्द देखने सुनने वालों की कमफहमी थी जिन्होंने राई का पहाड़ बनाकर जेबे दास्तान बना डाला, वरना मैं तुम लोगों को नहीं जानती क्या? बेशक ताहिरा ने तुम दोनों को जन्म दिया है, मगर तुम लोग मेरे हाथों से सींचे पौधे हो। मेरे सामने परवरिश पाई है तुम दोनों ने। आंख बदलने से पहले मैं तुम लोगों के अंदर का अहवाल जान सकती हूँ। फिर भला इस सारे किस्से में तुम्हारा दोष भी क्या, जब माँ ही औलाद के जज्बात को न समझ सके? उन्होंने अपने आंसू समेटे, हाथ से पकड़कर उस्मान को साथ बिठाया। नौशी और जरिश कॉलेज गई हैं। उस्मान अहमद ने अतराफ का जायजा लेते हुए दरियाफ्त किया तो उन्होंने सर अजबात में हिला दिया। हाँ, मैं ऑफिस गया था तो चचा जान से मुलाकात हुई थी। उस्मान ने माहौल का सोच ख़त्म करने को मौजू बदला। हाँ, बीमारी के बाद पहले दिन गए हैं आज। मैं भी कितनी कम अकल हूँ, आते ही तुम्हें परेशान कर दिया, कुछ पूछा ही नहीं। कब आए और हमजा जुबारिया कैसे हैं? बस रात को ही पहुंचा था। हमजा और जुबारिया दोनों ठीक हैं। छुट्टी का मसला था, अकेले आना पड़ा, वरना शायद इकट्ठे ही आते। तुम दोनों बैठो, मैं यास्मीन से कहती हूँ कि खाने पीने का बंदोबस्त करे। बच्चियाँ कॉलेज से थोड़ी देर में लौटने वाली हैं। यास्मीन से खाना बनवा रही हूँ, ज़रा देख लो। वो उठने लगी तो सुमान भी उठ खड़ा हुआ। दिल में एक तिश्नगी सी लिए उसने चची का चेहरा देखा तो वो नजरें फेर गई। मैं चलता हूँ, आप रुकेंगे ना? सुमान ने उस्मान को देखा तो शाइस्ता ने फौरन सुमान की तरफ निगाह की। जहानत से चमकती भरपूर निगाहें बुझी बुझी सी थीं। रुको सुमान, खाना खाकर जाना।
عثمان سے پہلے انہوں نے کہا تھا۔ نہیں چچی جان، پھر کبھی صحیح، دراصل مجھے میٹنگ کے لیے نکلنا تھا۔ عثمان بھائی نے کہا کہ آپ کے یہاں ڈراپ کر دوں تو چلا آیا۔ انہوں نے خاموشی سے سمان کو دیکھا، کچھ کہنے کو لب واہ کیے تو پھر بھینچ لیے، پھر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ سمان جب وہاں سے نکلا تو دل پر منو بوجھ تھا۔ وہ یہاں نہیں آنا چاہتا تھا مگر عثمان کے سامنے ہار گیا تھا۔ اب جب کہ وہ اس گھر سے واپس جا رہا تھا تو بے بسی کا ایک اور ہی عالم تھا۔ سمان نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ڈرائیور نے گیٹ کھولا تو گاڑی زن سے باہر نکلی تھی، مگر تھوڑی دور ہی سمان کو بریک لگانا پڑ گئی تھی۔ دوسری گاڑی کو دیکھ کر سمان نے خود پر بڑی بری طرح ضبط کیا تھا۔ کالج یونیفارم میں ملبوس وجود پر سمان کی نگاہ چپک گئی تھی، اور تبھی پچھلی سیٹ پر بیٹھی زرش نے بھی سائڈ پر اچانک رک جانے والی گاڑی اور اس میں موجود شخص کو دیکھا تھا۔ سمان بھائی، اس کے نیم ہونٹ نیم وار رہ گئے تھے۔ شارق زمان کے میگزین کا مسئلہ درمیان میں ہی الجھ کر رہ گیا تھا کہ اماں کی ٹانگ کا پلستر اترنا تھا۔ انہیں اگلے دن ہی اسپتال ایڈمٹ کروانا پڑا تھا۔ رفعت باجی کے اصرار پر دوسری ٹانگ کے لیے مصنوعی ٹانگ کا بندوبست کرنا پڑ گیا تھا۔ شارق کا خیال تھا کہ اماں پہلی کی طرح صحت یاب ہو جائے تو پھر مصنوعی ٹانگ لگوائیں گے، مگر رفعت باجی بھی بضد تھیں کہ ان کی موجودگی میں ہی یہ نیک کام ہو جائے تو بہتر ہے۔ سو شارق زمان کو بھاگ دوڑ کرنا پڑ گئی تھی۔ دائیں ٹانگ سے پلستر اترا تو ایکس رے وغیرہ کے رزلٹ سے سب کو تسلی ہوئی کہ ٹانگ کی ہڈی درست حالت میں آ چکی تھی۔ اب کچھ احتیاط اور وقت درکار تھا جب اماں مکمل طور پر صحت یاب ہوئیں۔ اسی لیے شارق نے رفعت باجی کی بات مان لی تھی۔ بائیں ٹانگ کے اوپر کے حصے کا آپریشن کر کے راڈ ڈال کر مصنوعی ٹانگ کا انتظام کیا گیا تھا۔ اماں کو اسپتال ایڈمٹ ہوئے تیسرا دن تھا۔ شارق زمان کی کچھ آفس کی مصروفیات اور کچھ اسپتال کے چکروں میں تقریباً کافی حد تک مصروف ہی تھا۔ دن میں تو رفعت باجی اسپتال میں رہ لیتی تھی، پھر سارا دن کوئی نہ کوئی اسپتال کا چکر لگا لیتا تھا، مگر رات میں شارق زمان کو ہی رکنا پڑتا تھا۔ خالدہ بیگم اور ساجد بھائی روزانہ ہی چکر لگا رہے تھے، جبکہ نبیل بھائی کا دل ابھی تک اپنی تذلیل پر کھور رہا تھا۔ اماں کی وجہ سے وہ نویرہ کی شادی سے لے کر اب تک مہر بلب تھا، مگر اندر سے تو لاوا پھٹ پڑنے کو تھا۔ بے شک نویرہ شارق زمان کے گھر آباد ہو چکی تھی، مگر اپنی ذلت وہ نہیں بھول پا رہا تھا۔ شاید اسی لیے وہ اسپتال بھی نہ جا سکے کہ خواہ خواہ شارق زمان کو دیکھ کر اپنا ضبط کھو بیٹھے گا، ورنہ تو دل چاہ رہا تھا کہ کچھ کر بیٹھے۔ 2-3 دن کے مسلسل باغ دوڑ سے اس کا میگزین دوبارہ سے اپنا کام شروع کر چکا تھا۔ اس دن وہ آفس میں سب کو پہلے ہی کی طرح کام میں منہمک دیکھ کر بڑے اطمینان سے ہاسپٹل چلا آیا تھا۔ رضیہ چچی رفعت باجی کے پاس ہی تھی، 1-2 گھنٹے وہاں رک کر وہ گھر چلا آیا تھا۔ آج طبیعت بڑی ہلکی پھلکی تھی، میگزین پر لگی پابندی اب واپس لے لی گئی تھی، گویا اس کی ٹینشن ختم ہو گئی تھی۔ شارق زمان کی گاڑی کی آواز سن کر ڈرائنگ روم کے صوفے پر دراز نویرہ نے ایک دم لب بھینچ کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ اسلام آباد سے واپسی کے بعد اب تک وہ شارق زمان کو نظر انداز کر رہی تھی، پھر وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے گھر میں ٹک بھی کم رہا تھا۔ ایک طرح سے نویرہ کو اپنے آپ کو سنبھالنے بلکہ اپنے رویوں پر استقامت سے ڈٹے رہنے کا حوصلہ مل گیا تھا۔ وہ اس شخص کو آخری حد تک مزہ چکھانے کا تہیہ کیے ہوئی تھی، اور اپنے رویوں میں وہ خود کو حق بجانب بھی سمجھتی تھی۔ شارق زمان اسے ہی دیکھتا شاکرہ سے پوچھتا ڈرائنگ روم میں ہی چلا آیا تھا۔ آج مزاج میں جولانی سی تھی، مگر نویرہ کو صوفے پر دراز آنکھوں پر بازو رکھے محو خواب دیکھا تو وہ رک گیا تھا۔ وہ نویرہ کے رویوں اور ان کا پس منظر بخوبی سمجھ رہا تھا، شاید اسی لیے وہ گھر آنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ اپنی تمام طرز زیادتیوں سے باخبر تھا، اسی لیے نویرہ کو سنبھلنے کا موقع دے رہا تھا، مگر نویرہ کے تیور تو کچھ اور ہی بگڑتے جا رہے تھے۔ نویرہ اس سے قریب آ کر اسے آواز دی، مگر کوشش ناکام ہی رہی۔ شارق کے اندر ایک دم جھنجھوڑ کر نویرہ کو ایک پل میں اپنے سامنے کھڑا کر دینے کی تحریک برپا ہوئی۔ میں آپ کے پاس ہوں، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ اگر مجھے آپ سے بھاگ نہیں ہوتا تو کبھی یہاں نہ آتی۔ میری بدقسمتی مجھے ہر بار آپ کے سامنے لے کر آتی ہے۔ نیند سے بوجھل یہ آواز نے شارق زمان کے ہاتھ کو رک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اسے وقت ہی اسی لیے دے رہا تھا کہ وہ اب اس حقیقت کو قبول کر لے، مگر اب جب بھی نویرہ پر نظر پڑتی تھی، نویرہ گویا ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط دکھائی دیتی تھی، اور اس کی یہی مضبوطی شارق زمان کو اپنے اوپر ضبط کر لینے پر مجبور کر رہی تھی، ورنہ شارق زمان نے ایک نگاہ سوئے وجود پر ڈالی، پھر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کے وہاں سے ہٹتے ہی نویرہ نے آنکھوں سے بازو ہٹا لیا تھا۔ وہ بڑی دیر تک اسی طرح لیٹی رہی۔ وہ اس شخص کو اتنی جلدی کیسے معاف کر دیتی؟ اس کے اندر کن من سی برسنے لگی۔ پڑوسیوں کے مالی کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ اٹھ کر لان میں چلی آئی۔ کل ہی لان کی حالت دیکھتے ہوئے اس نے چوکیدار بابا سے کہا تھا کہ پڑوسیوں کے مالی کو کہہ کر اس کا حلیہ سنوارے۔
यहाँ तो सिर्फ घास फूस ही नजर आ रही थी। शाकरा से शारिक के मुतालिक दरियाफ्त किया तो उसे तसल्ली हुई। शारिक खाना खाकर कमरे में जाकर सो चुका था। वो आराम से अपने साथ शाकरा को मिलाए माली को हिदायत देते। लॉन की नागुफ्ता हालत संवारने में हलकान हो रही थी। लॉन की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया गया था, इसीलिए पौधे बर्बाद हो चुके थे। अब तो उनका सिर्फ नामो निशान ही था। शाकरा को शारिक की पुकार सुनाई दी तो क्यारी में मट्टी खोदती नवीरा एक पल को रुकी। साहब आपको बुला रहे हैं। अगले ही बल शाकरा पैगाम लिए मौजूद थी। नवीरा ने गहरी सांस लिए हाथ में पकड़ी खुरपी से घुमाई। माली से पूछकर इस क्यारी की मट्टी नरम करो। पौधे में मंगवा देती हूँ, 1-2 दिन में लगवा लेंगे। मैं अभी आती हूँ। हाथों में मट्टी को झाड़ते वो अंदर की तरफ बढ़ गई थी। शारिक के कमरे की दहलीज पर उसके कदम ठिठके थे। अम्मा घर पर नहीं थी। रिफत बाजी भी रात की थकन की वजह से कहीं जा लेटी थी और वो भी उनके साथ कहीं भी जा पड़ती थी। इस कमरे में शारिक की मौजूदगी में गलती से भी दाखिल नहीं हो रही थी, मगर अब उसके अंदर अपनी तजलील का जहर फिर सिरायत करने लगा तो दरवाज़ा धकेलते अंदर दाखिल हो गई कि आखिर कब तक वो शख्स से आंख मचोली खेल सकती थी। शारिक ज़ुमान बिस्तर पर दराज शायद उसी का मुंतज़िर था। पहली निगाह नवेरा के बेतासुर चेहरे पर पड़ी तो सारी खुशफहमियों की तितलियां उतरती चली गई। आपने बुलाया था? बड़े उखड़े खुरदरे लहजे में खड़े खड़े में दरियाफ्त कर रही थी। तुम तो यहाँ आकर यूं मसरूफ हो गई हो कि ढूंढने पर भी नजर नहीं आती। मुस्कुरा कर गोया उसके लहजे के तासुर को खत्म करना चाहा था। कोई काम है तो बताएं, फारिग नहीं हूं। गोया जता दिया था। शारिक का कहका बेसाख्ता था। भरपूर निगाहों से कदरे फासले पर खड़े वजूद को देखा। नवीरा एक लम्हे को पजल सी हो गई थी। ऐसी बेबाक निगाहें वो इनकी आदि कब थी। काम ही है तो बुलवाया है। मुझे भी पता है प्राइम मिनिस्टर की जानिशीन तो तुम ही हो। सारा मुल्क आखिर को तुम्हारे नातवा कंधों पर है। नवीरा ने गुस्से से देखा। शारिक बिस्तर से उतरकर उसके मुकाबले ठहरा। क्या कर रही थी? बड़े गंदे हाथ किए हुए हैं। मट्टी से अटियात थामे शारिक रुक गया था। नवीरा को बड़ी तकवीत मिली थी। अपने हाथों का गंदा होना बड़ा गनीमत लगा। आप काम बताएं, मुझे बड़ा काम है। उसका अंदाज हुनूस था। तुमने खुद पर गौर किया है? कितना बदल गई हो तुम। हाथ तो नहीं, कंधों पर अपने भारी हाथ जमाए शारिक ने कहा तो नवेरा खोल कर रह गई। जाओ हाथ धोकर आओ। आज मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए टाइम निकाला है, मगर तुम मूड खराब कर रही हो। मैं फारिग नहीं हूँ। उसने गुस्से से कहा तो वो हंस दिया। शोहर के दिलजोई से बढ़कर एक बीवी के लिए कोई और काम अहम नहीं होना चाहिए। जाओ शाबाश, हाथ धोकर आओ। मजबूरन उसे बाथरूम का रुख करना पड़ा था। हाथ धोकर आई तो शारिक मुंतजिर ही था। हाथ पकड़ कर अपने पास बिस्तर पर ही बैठा लिया। ऐसा कब तक चलेगा? उसे तनहा बेतासुर चेहरे को देखते शारिक ने कहा तो वो सर उठाकर शारिक ज़ुमान को देखने लगी। मैं अपनी गलती का एतराफ़ तुम्हारे सामने कर चुका हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ। मैं तुमसे ये सब उसी तरह करने पर मजबूर था, वरना मैं रिफत बाजी को इतनी इमरजेंसी में ना बुलवाता। मैंने हालात को अपने हक में करने की कोशिश की थी, मुस्बत अंदाज में, मगर तुमने और नबील ने सारी बात ही बिगाड़ दी थी। अब तो तुम्हारी ये नाराज़गी, ये रवैये कोई अहमियत नहीं रखते। नवेरा ने बड़े ज़ब्त से सारी बात अपने नज़दीक सुनी थी। मैं ये सब सुन चुकी हूँ। आपको कुछ और कहना है तो ठीक, वरना। वो उठने लगी थी। शारिक ने सख्ती से हाथ पकड़कर उसे सामने दोबारा बिठा लिया था। इट इज़ इनफ नवेरा। और जो आप मेरी फैमिली के साथ कर चुके हैं वो क्या था? इतनी तजलील, इतनी रसवाई। आपने तो ये भी ना सोचा कि लोग मेरे किरदार पर कैसे कैसे उंगलियां उठाएंगे। आपने सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को अहमियत दी। एक पल में ही वो सारी मजबूती भुलाए सब खो बैठी थी। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए। वो एकदम बिफरी थी। नवेरा, नाम भी न ले। ये जंग तो सारी जिंदगी चलेगी। मैं अपनी भाइयों के सामने सारी उम्र के लिए सर उठाने के काबिल नहीं रही। सिर्फ आपके लिए, आपकी वजह से नबील भाई मुझसे बात करने के रवादार नहीं है। दिल का दुख जुबान पर आ गया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। सब कुछ कानून ज़वाबित के तहत किया है। किसी की बहन को अगवा करना कानून ज़वाबित के तहत है। किसकी इज्जत पर रात की तारीकी में हाथ डालना आपके नज़दीक कानून है। किसी के किरदार को किसी की आंखों में मशकूक ठहराकर रिश्ता ख़त्म करवाना आपके ख्याल में ज़ाब्ते की कार्रवाई थी। बड़ी आला सोच है आपकी शारिक जवान साहब। कोई आपकी बहन के साथ ऐसा करे तो कितनी तकलीफ होगी आपको। कोई आपको आपकी माँ का हवाला दे, आपका जी चाहता है उसे कत्ल कर दे, और किसी की गैरत का जनाजा निकाल कर आप मुझे कानून ज़वाबित सुना रहे हैं। वो तो जैसे सारे हवास खोकर बेनुकत बोली थी। नवेरा, शारिक का जब्त के मारे बुरा हाल हो गया था। नाम न ले मेरा। सच कहती है दुनिया माँ बाप पर ही औलाद दौड़ती है। बड़ी अम्मा की तरबियत भला कहाँ काम आती जब माँ बाप का खून ही इतना पुरअसर हो। जैसी माँ वैसा बेटा, जैसी बहन वैसा भाई। नवेरा,
बस, अब एक लफ्ज भी तुमने जुबान से निकाला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। गुस्से से उसे पीछे धकेलते शारिक जुमान का जब्त के मारे बुरा हाल हुआ था। माँ बाप का किरदार औलाद की किरदार साजी में बड़ा मुआविन साबित होता है। आप जैसी शख्सियत शिकस्त तोरेख के किरदार की हामिल शख्स से यही तवक्को की जा सकती है कि वो किसी की भी बेटी को अगवा करवा ले और उसे हक बजारे भी समझे। वो बेखौफी से कहते, आखिर में तमस्खुराना अंदाज में हंसी। तो शारिक ने मुठियां भींच कर अपने आप को रोका, वरना दिल तो चाह रहा था कि जिसकी माँ अस्पतालों में रुल जाए उस जैसे शख्स से यही तवक्को की जा सकती है जिसके नज़दीक सिर्फ अपने एहसासात अहम हो, उससे मजीद क्या उम्मीद। नवेरा, बस बहुत कर ली तुमने बकवास। गुस्से से शारिक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। कुछ बैद भी ना था ये हाथ उसके रुखसार पर भी नक्श निगार बना सकता था। बहुत सुनी मैंने तुम्हारी तल्ख कलामी, मैं तुम्हें वक्त दे रहा था कि तुम अब खुद को इस माहौल में एडजस्ट कर लो, मगर अब नहीं। मैंने ये सब इसलिए नहीं कहा था कि मैं एक तरफ बैठा तुम्हारे राजी होने का मुंतजर रहूं। अगर तुम ये सब मुझे इसलिए दे रही हो कि मैं गलत हूं तो तुम एनर्जी वेस्ट कर रही हो। सो बी नॉर्मल। बड़ी जब्त से शारिक जुमान ने अपने आप को नॉर्मल किया था। नवेरा हैरान होकर देखी गई। शारिक जुमान ने उसकी कमर के गिर्द बाजू फैलाकर उसे अपने करीब किया तो वो सटपटा गई। तुम्हें पानी की खुशी में अपने आप को भी अगर हारना पड़ता तो गम नहीं था। अगले ही पल वो बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे चंद पल पहले उसे गुस्सा आया ही ना हो। अम्मा घर आ जाती हैं तो फिर हनीमून ट्रिप के लिए निकलते हैं। वैसे कहाँ चलोगे तुम? जहन्नुम में। जहर से भले जुमले थे। शारिक जुमान खुलकर हंसा, उसे झटका देकर मजीद करीब किया। जहन्नुम में क्यों, जन्नत में क्यों नहीं? तुम्हें पाकर तो लगता है जिंदगी जन्नत बन गई है। अब तो गुस्सा भी नहीं आता। इतनी गालियां खाकर गालिब चच्चा बदमजा ना हुए होंगे। मैं तो फिर, क्या ख्याल है, चलोगी जन्नत में? नवेरा ने होंठ भींच लिए। और हाँ, अब ये स्लीपिंग पिल्स खाने की हिमाकत मत करना। मैं हर बार की तरह अब भी शराफत का मुजाहरा करूं ये गारंटी नहीं दूंगा। नवेरा को पहली बार महसूस हुआ कि उस शख्स की मुस्कुराहट कितनी खूबसूरत है। वो फौरन चेहरा झुका गई। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं इतना बेवकूफ़ या अहमक हूँ जो तुम्हारे फरार का मतलब ना समझ सकूँ? ये पिल्स तो कभी नींद ना आने पर इस्तेमाल करना पड़ती थी, मगर तुम? खबरदार, अगर दोबारा इनको हाथ भी लगाया तो। उसे खुद से परे करके दराज से शीशी निकालकर शारिक ने उसके सामने की थी। वो लब दांतों तले दबाए उसे देखी गई। ये वही शीशी थी, मगर शारिक को कैसे मिल गई? वो अंदर ही अंदर उलझी थी। जब अपना हुलिया दुरुस्त करो, कितनी पीली हो रही हो तुम, कहीं से भी नहीं लग रहा कि नई नवेली दुल्हन हो तुम। शारिक के स्नेह हुक्म पर वो क्लस कर रह गई। ठीक हूं मैं। उसने अपने कपड़ों की तरफ निगाह की। परसों ही तो पहने थे। हम अम्मा के पास जा रहे हैं, वो तुम्हारा पूछ रही थी। कपड़े चेंज करो फिर चलते हैं। उसे उसी तरह खड़े देखकर शारिक को टोकना पड़ा तो उसे भी याद आया कि अम्मा अस्पताल में है। कैसी हैं बड़ी अम्मी अब? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें। वैसे तो अम्मा से मोहब्बत के बड़े दावे हैं। वो उसे छेड़ रहा था तो वो जिद हो गई। अल्लाह का शुक्र है झूठे दावे नहीं, ना ही सर पर पड़ा बोझ बना रही हूँ। आपने जो किया वो एक तरफ, वो मेरी खौला है और उनसे मोहब्बत एक तरफ। वो अलमारी की तरफ बढ़ाई थी। शारिक ने उसके दराज सरापे को भरपूर निगाहों से देखा। मोहब्बत तो मैं भी अम्मा से करता हूँ। नवेरा ने पलट कर देखा, पूरी तरह मुतवज्जे था। वो पल भर को पजल हुई, चेहरे पर सुर्खी सी फैल गई। ये सूट निकाल लो। वो ऑफ वाइट सूट निकाल रही थी जब शारिक के कहने पर उसने पर्पल एंड पिंक शेड के खूबसूरत सूट पर नजर डाली। शारिक उसके पीछे ही आ खड़ा हुआ था। उस पर घबराहट सी तारी होने लगी। उसने बगैर बहस किए वही सूट खींच लिया। अब जिंदगी उस शख्स के साथ गुजारनी थी, कब और कहाँ तक वो बहस करती। वो नहा कर लिबास बदल कर निकली तो शारिक रेडी था। नवीरा को देखकर उसकी आंखों की चमक में कई गुना इजाफा हुआ था। उस पर्पल एंड पिंक शेड में उसका वजूद कायम बैठा रहा था। शारिक की निगाहों का वालिहानापन नवीरा को पजल करने लगा था। वो आईने के सामने जा खड़ी हुई। वो बालों में ब्रश कर रही थी जब शारिक ने उसका रुख कंधे से थामकर अपनी तरफ कर लिया। अगर इसी तरह सारी बातें मानती जाओगी तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। ताज़ा शैम्पू की खुशबू गीले बालों की नमी में बहुत मशहूर कौन लग रही थी। नवेरा को शारिक के वालिहानापन पर वहशत होने लगी। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ। मेरी जिंदगी पर सिर्फ मेरा या आपका हक तो नहीं, इससे पहले मेरे वालिदैन का भी है। कभी सोचा है आपने जो किया है उससे वो किन अज़ाबों को झेल रहे हैं? उसकी आवाज़ में नमी उतर आई थी। शारिक पर उस नवी ने भरपूर जादू सा किया था। बेख्तियार उसे खुद में समेट लिया। नवीरा खुद भी जर्द हो रही थी। उसकी पनाह में उसके जुल्म पर फूट फूट कर रोई। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। उससे करूँगी, उससे बावर करवा दिया था।
मैं उन सब से माफ़ी मांग लूँगा। तुम कहो तो पैरों में छुप जाऊँगा। आपने मेरे किरदार पर उंगली उठाई थी, हर किसी की नज़रों में मुझे बद किरदार कहलवाया। मैं ही अब सारे हालात संभाल लूँगा। इसलिए उसका रोना देखा नहीं गया था, और फिर वो रोती रही, उसका एक एक जुल्म गिनवाती रही, और वो हर जुल्म पर सर तस्लीम करते अजाले के सद्देबाब बताता चला गया, और नवेरा हैरत ज़दा रह गई। उस्मान भाई का ख्याल था कि वो यहाँ आकर हालात को अपने हक में मुवाफिक कर लेंगे, मगर सुमान से मिलकर सब कुछ जानने के बाद जब चचा चची से मुलाकात हुई तो एहसास नेदामत ने उस्मान अहमद के अंदर शगाफ से डाल दिए थे। वो तो उनसे बात करने आए थे, अपना हक मांगने आए थे, मगर चची की मोहब्बत और गिरिया वजारी ने जुबान से गोया कुव्वत गोयाई छीन ली थी, और फिर रही सही कसर नफीसा फुप्पो के यहाँ जाकर पूरी हो गई थी। फुप्पो तो भरी बैठी थी, उनके जरा सा जोर देने पर उन्होंने उन तमाम राजों से भी पर्दा उठा दिया था जो सारी उम्र उनके वालिदैन छुपाते रहे थे। वो तो कई सानियत तक शजदा रह गए थे। माँ चाहे कैसी भी हो, औलाद के लिए मॉडल होती है। वो तो बहुत कुछ समझने के बावजूद कभी सोच ना पाए थे कि वालिदैन की जिंदगी में कभी ऐसा मुकाम भी आया होगा। उस्मान के झुके सर को देखकर नफीसा आपा को नेदामत ने घेर लिया। उन्होंने अपने तई बहुत समझाया बुझाया, मगर उस्मान के खामोश लबों पर दोबारा गोया ही ना आ पाई थी। बुझी आंखों में तैरती नमी सख्त इस्तराब और बर्दाश्त की गवाह थी। वो कहकर पछताई। फिर वो वहां से चले आए थे बगैर मजीद कुछ कहे सुने। सुमान अहमद के सामने बैठकर उन्होंने अपने दिल का गुबार निकाला था। अजियत और तकलीफ से तो सुमान अहमद भी दो चार हुआ था, मगर इस कदर नहीं जितना उस्मान अहमद थे। उस्मान ने तो हादिया वाले वाक़े के बाद घर से फरार इख्तियार कर ली थी, माँ बाप से मुतनफ़िर हो गए थे, जबकि सुमान अहमद का वालिदैन के साथ 24 घंटों का साथ था। बेशक किसी ने बतौर ख़ास कुछ नहीं बताया था, मगर वालिदैन के रोज़ बरोज़ के झगड़ों से क्या वो इस मुस्तकिल चपकलिश की असल वजह अखज़ न कर सकते थे? बहुत कुछ न जानते थे भी, मगर कुछ कुछ तो इल्म था ही। छोड़े उस्मान भाई, अब परेशान होने या अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं। जो होना था वो हो चुका। मुझे तो पहले ही अंदाज़ा था, बल्कि इल्म था कि ऐसी ही कोई बात होगी। सुमान अहमद ने खुद को नॉर्मल करके तसल्ली दी थी, और उस्मान ने हैरत से सुमान अहमद को देखा था। सुमान की बर्दाश्त काबिल रश थी। मेरा ख्याल है फराह और अली भी बहुत हद तक तो नहीं, मगर बहुत कुछ तो जानते ही होंगे। बेशक अब्बू ने हमेशा अम्मी से मुतालिक चपकलिश को छुपाने की कोशिश की है, मगर कब तक? ये जो हमारे घर में आए दिन नत नए ड्रामे होते हैं, ये काफ़ी हैं हमें बावर करवाने को कि हम असल में क्या हैं। उस्मान अहमद ने जब से होंठ भींच लिए। सुमान अहमद की इस्तेहज़ाई हंसी बहुत तकलीफ दे थी, बहुत ज़्यादा, अंदर तक झंझोड़ती हुई। मैं कल वापस जा रहा हूँ। बहुत देर बाद उस्मान अहमद ने कुछ कहा था। अच्छी बात है, भाभी अकेली होंगी। नहीं, मैंने जुबारिया से कह दिया था कि वो अंकल के पास चली जाएं। प्लीज़ उस्मान भाई, ये जो इंकिशाफ है इसको सिर्फ इंकिशाफ ही रहने दें, अपने आप को संभालें। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया है ये। बेशक अम्मी हमारी माँ है, मगर ये भी सच है कि अब्बू भी अपनी जगह दुरुस्त है। अगर कहीं ऐसी कोई बात थी तो अम्मी को अब्बू के साथ एडजस्ट करना चाहिए था, और अब्बू को उन्हें समझना चाहिए था। मैं यहाँ अम्मी अब्बू दोनों को कसूरवार समझता हूँ। अब्बू ने अगर हमारे लिए समझौता किया भी था तो उसको निभाते भी। मियाँ बीवी में से किसी एक को ये कुर्बानी देना पड़ती है। अम्मी नहीं तो अब्बू को सही बर्दाश्त करना चाहिए था। नहीं सुमान, हम अब्बू के एहसासात नहीं समझ सकते। अब्बू क्या कोई भी शख्स नहीं बर्दाश्त कर सकता कि जिस शरीक हयात को वो इतनी मोहब्बत से आला मुकाम से नवाज रहा है, वो अपने दिल में उनके लिए सिरे से कोई जज्बात ही नहीं रखता। अब्बू के लिए ये ज़्यादा तकलीफ की बात थी कि वो कोई और शख्स नहीं, उनका भाई था। जो भी है, मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस मौजू पर बात करना चाहिए। हमने जो भी सुना या देखा वो हमारा सिर्फ तज्जिया हो सकता है। फुप्पो ने आपको जो भी बताया या सुनाया वो उनका तज्जिया है। हमने लोगों की सिर्फ बातें सुनी हैं। हमें नहीं पता वो कौन सी वजूहात हैं जो हमारे वालिदैन को इस मुकाम पर ले आई हैं, और ना ही हमारे वालिदैन ने हमारे सामने इन वजूहात का कभी जिक्र किया है। फिर अपने तई कुछ भी अखज़ कर लेना कबल अज़ वक्त है। मेरा ख्याल है हमें सिरे से इस वाक़े को ही फरामोश करना होगा, वरना ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो सकती है। हम तन्हा कुछ भी नहीं, हमें कदम कदम पर ना चाहते हुए भी अम्मी अब्बू दोनों की ज़रूरत रहेगी। बेशक अम्मी जो भी कर चुकी हैं, फिर भी उनकी हैसियत मुसल्लम है। उनको इस तरह डिस्कस करना मुझे बड़ी अजियत हो रही है। उस्मान अहमद ने खामोशी से सुमान अहमद के तासुरात नोट किए थे, फिर आहिस्तगी से सर हिला दिया। सुमान अहमद सच ही तो कह रहा था। ये मौजू सिवाय अजियत के और कुछ नहीं दे सकता। मैं फिर भी अबू से ज़रूर बात करूँगा। उस्मान अहमद का इरादा मजबूत था। प्लीज़ उस्मान भाई,
इन सब हालात ने अब्बू को अंदरूनी तौर पर पहले ही बहुत तोड़ दिया है। अम्मी को शायद इस बात से कोई फर्क ना पड़े, मगर अब्बू को बहुत पड़ेगा। वो कभी हमसे नजर मिलाकर बात न कर सकेंगे। मैं उन्हें जानता हूँ, वो हमारे मामले में इस कदर ही हसास हैं। वो तो इस वाक़े से ही मुझसे कतराने लगे हैं, और मैं उनसे। ये ना हो हमारा रहा साहब भरम भी ख़त्म हो जाए। अम्मी अब्बू समझते हैं कि हम लोग बेखबर हैं। उन्हें यही सोचने दें, कम से कम वो शर्मिंदा तो ना होंगे। उस्मान अहमद का मौक़िफ़ दुरुस्त था। उस्मान अहमद ने एक गहरी सांस खारिज की थी। उस्मान भाई, वादा करें ये बात हमारे दरमियान रहेगी। किसी और के सामने अब जिक्र नहीं करेंगे, हत्ता कि भाभी से भी नहीं। बेफिक्र रहो यार, इतना तो मैं भी जानता हूँ, ये बहुत नाजुक मौजू है। हमारी अपनी ज़ात ही डिस्कस होगी, और जुबारिया से भी नहीं करूँगा। वो समझती है कि अम्मी अब्बू के दरमियान चपकलिश नजरियाती और ख़ानदानी बुनियादों पर है। ये उसे मैंने ही बावर करवाया था। अब मैं अपने ही मुंह से अपने वालिदैन की ज़िंदगी के इन गोशों को कैसे बेनकाब कर सकता हूँ। सुमान अहमद ने पुरसुकून सांस ली, वरना यही खदशा था कि कहीं उस्मान जज्बातियत में किसी और से जिक्र न कर बैठे, खास तौर पर अम्मी अब्बू से। नफीसा बेगम ने साथ जमाल के मना करने के बावजूद सऊद के सामने न सिर्फ रिश्ता डाला था, बल्कि आनन फानन बात भी तय कर दी थी। वो अपने फैसले पर पछता तो नहीं रही थी, मगर जिस तरह साथ जमाल ने लाताल्लुक़ी का मुजाहिरा कर रखा था, वो शशोपंज में मुब्तला हो गई थी कि कहीं जरिश को साथ से मंसूब करके उन्होंने गलती तो नहीं की। साथ जमाल जो फौरन आने पर आमादा था, जिसने खुद अपने मुंह से बारहा फरहा के लिए मामू से बात करने को कहा था, और वो राजी भी थी। उन्हें फरह दिलो जान से पसंद थी, मगर जिस तरह ताहिरा ने जरिश पर इल्ज़ाम तराशी की थी, उसने उन्हें ये इंतहाई इक़दाम करने पर मजबूर कर दिया था। मगर अब साद नाराज था। वो जो आने की तमाम तैयारियां कर चुका था, उसने पाकिस्तान न आने का कहकर उनसे क़तई लाताल्लुक़ी का गोया इजहार कर डाला था। वो मुसलसल परेशान थी। बेशक हादिया से उन्होंने जिक्र नहीं किया था। एक घर में रहते हुए भी उन्होंने साद के राजी न होने की बात उससे छुपा ली थी, मगर कब तक। उन्होंने सितारा से बात की थी। सितारा और साद की तो बहुत दोस्ती थी। वो बेशक उनसे बात नहीं करता था। वो खुद अमेरिका कॉल करती भी तो वो रिसीव नहीं करता था, मगर इस सितारा के जरिए वो उसे राजी कर सकती थी, मगर ये कोशिशें भी नाकाम ठहरी थी। दिन इतनी तेजी से गुजर रहे थे कि उन्हें कुछ सुझाई ही ना दे रहा था। नौशी के ससुराल वाले नौशी के इम्तिहानात के फौरन बाद शादी की तारीख की बात कर रहे थे, जो कि पहले ही तय था। साद अहमद मामूल के मुताबिक ऑफिस सऊद अहमद मामूल के मुताबिक ऑफिस जा रहे थे। सईद अहमद से ताल्लुकात पहले जैसे ही हो चुके थे। बेशक दोनों घरों के एक दूसरे के यहाँ आमदोरफ्त तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। उस वाक़े के बाद फरह और अली ने सिर्फ एक बार ही चक्कर लगाया था। वो भी जरिश का लाताल्लुक़ अंदाज देखकर फरह को बड़ी तकलीफ हुई थी। कितनी दोस्ती और मोहब्बत थी दोनों में, मगर हालात ने क्या से क्या कर डाला था। कॉलेज में फरह के रवैये पर जरिश अपने ऊपर जब्त कर जाती थी। पहले की तरह एकदम लाताल्लुक़ तो नहीं रही थी, मगर वो पहले की तरह फरह से बेतकल्लुफ़ भी न रही थी। सुमान अहमद तो गोया इस घर को भूल गया था। वो इस घर का क्या लगता था, अपने घर को भी भूल गया था। वो अपना सारा वक्त बिजनेस में लगा देता था, हर वक्त मुतहर्रिक को मसरूफ। ऐसे में कभी चचा से सामने हो जाता तो सर खुद ब खुद झुक जाता था। एहसास निदामत से वो उनके सामने ज़्यादा देर ठहर नहीं पाता था। एक खलीज से दरमियान में हायर हो गई थी, जिसे हर कोई महसूस कर रहा था, मगर कुछ भी करने से कासिर था। वक्त का काम है चलते रहना, वो कब किसी की मर्जी की ताबे रहा है। हर एक को उसकी मुख्तसर से ज़िंदगी में अपनी बिसात के मुताबिक ही मिला है। सो जरिश ने भी जीना सीख लिया था। इतनी बड़ी ठोकर खा कर भी ना सीखती तो फिर सारी उम्र बेअक्ल ही रहती। उसने उनकी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। नौशी के साथ मिलकर घर पर तवज्जो देना शुरू कर दी थी। सारी बेपरवाही और बचपनों तो भूल भाल गई थी। अब तो सिर्फ यही याद था कि वो बच्ची नहीं रही। सारी बेपरवाही और नालायकियां भूल कर जिंदगी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। ताहिरा बेगम की नफरत का असल मकसद जानकर तो वो और मोहतात हो गई थी। इस कहानी से उसे बहुत कुछ सीखने को मिला था। जिंदगी के बहुत से रंग देखने और सोचने का मौका मिला था। बेशक पहले की तरह उसका एतमाद बहाल नहीं हुआ था, मगर उसे जिंदगी को उसके असल मुआयने में जानने का मौका मिला था। सुमान अहमद से मुतालिक उसके जो भी एहसासात थे, वो उतने ही पाकीज़ा और शफाफ थे जितनी कि वो खुद थी। साद जमाल से निस्बत तय पाने के बावजूद वो इस रिश्ते को कबूल न कर पा रही थी। साद जमाल का तस्वुर भी उसके जहन को न बदल पाया था, बल्कि वो तो उलझ गई थी। ऐसे किसी भी रिश्ते में बंध जाना यूं अचानक हादसाती तौर पर, वो अभी बेयकीन थी। अगरचे अब तो काफ़ी दिन बीत चुके थे। ख़ानदान भर को उसके रिश्ते तय हो जाने की खबर मिल चुकी थी। नफीसा फुप्पो ने ख़ानदान भर में बाकायदा मिठाई तकसीम करके दोनों की निस्बत का ऐलान किया था। उसके हाथ में साद जमाल के नाम की अंगूठी पहनाकर उन्होंने अपनी तरफ से ताहिर और उसकी बहन कैसरा बेगम की घटिया चाल को नाकाम बना दिया था। मगर जरिश को लगता था कि बहुत कुछ गलत हो चुका है।
साथ जमाल को तो उसने कभी कजन की हैसियत से भी इतनी अहमियत ना दी थी, अब कहाँ सारी उम्र का साथ निभाता था। हाँ, वो मुतमईन थी कि इस रिश्ते के तय पा जाने से उसके वालदैन खुश हैं। उसके वालदैन का एतमाद उसकी ज़ात पर उसी तरह बरकरार है। फुप्पो ने जिस तरह उस आड़े वक्त में उनका साथ दिया था और जिस तरह मामा पापा उनके मशकूर थे, इस तर्ज अमल ने उस इस रिश्ते को कबूल करने पर उकसाया था। बेशक वो लाचार थी, मगर जब भी मामा पापा के हवाले से इस निस्बत से मुतालिक सोचती या गुना सकून हासिल होता। लेकिन दूसरे ही लम्हे किसी कोने से कई चेहरे आकर उसके इत्मीनान को मलिया मेट कर देते थे, और वो सिर्फ जहनी खलफशार से ही दो चार न होती थी, बल्कि दिली तौर पर भी बेसकून हो जाती थी। ऐसे में उसकी पनाहगाह सिर्फ किताबें होती थीं। उसने अपने आप को हर तरह से अपनी स्टडी की तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की थी और उसमें किसी हद तक कामयाब भी ठहरी थी। फिर घर में नौशी की शादी की बात चलने लगी तो उसका स्टडी के बाद का सारा वक्त नौशी के साथ ही गुजरने लगा। हारून अंकल शादी की तारीख मांग रहे थे, जबकि मामा पापा टाल रहे थे कि नौशी आराम सकून से अपने एग्जाम्स क्लियर कर ले, फिर शादी के हंगामों का सोचेंगे। मगर वो लोग बज़िद थे कि दिन तय कर लेते हैं, एग्जाम्स के फौरन बाद शादी रख लेते हैं। घर में आजकल ये इशू जोरों शोर से चल रहा था। तकरीबन रोज ही हारून अंकल और आंटी चले आते थे। जरिश 2 दिन कॉलेज से गैर हाजिर थी। वैसे भी आजकल कॉलेज में मुख्तलिफ फंक्शंस हो रहे थे, सो वहां जाकर टाइम ज़ाया करने के बजाय वो घर रहकर ही स्टडी पर तवज्जो दे रही थी। रात को सब अपने कमरों में चले गए थे। वो टीवी लाउंज में बैठी किताबों में मसरूफ थी। जरिश, क्या कर रही हो? नौशी की आवाज़ पर उसने सर उठाकर उसे देखा। कुछ नहीं, बस पढ़ रही थी। खैरियत? हाँ, वो उसके पास कालीन पर बैठ गई थी। जरेश ने महसूस किया वो कुछ उलझी हुई है। आज उसे मामा और पापा के हवाले से भी ऐसा ही महसूस हुआ था, मगर वो टाल गई थी। मगर अब नौशी को हाथ मसलते देखकर जरूर चौंकी। क्या हुआ? तुम परेशान हो? कुछ कहना है? वो रुकी, जरेश को देखा। आज फुप्पो का फोन आया था। तो वो हैरान हुई। भले इसमें कौन सी नई बात है, फुप्पो का फोन तो रोजाना ही आता रहता है। उन्होंने मामा से शादी की बात की है। जरेश हैरत से देखी गई। मामा पापा भी परेशान हो गए हैं। उनका ख्याल था कि कम से कम 1-1.5 साल तक तुम्हारी मंगनी रखेंगे, मगर पप्पो कह रही थी कि सात भाई शायद चक्कर लगाएं, इसीलिए वो उनके आते ही फौरन शादी करना चाह रही हैं, क्योंकि सात भाई ने वहाँ जॉब कर ली है। वो आना ही नहीं चाह रहे थे, मगर पप्पो के जोर देने पर आने का कहा था, और साथ ये भी कह दिया है कि वो ठहरेंगे नहीं, दोबारा आने में उन्हें अरसा लग सकता है। इसलिए पप्पो ने मामा से बात की है कि सात भाई जैसे ही पाकिस्तान आए वो तारीख तय कर देंगी। नौशी ने तफसीलन बताया तो जरिश का सकता टूटा। ये क्या तमाशा है? पप्पो ने ये सोच भी कैसे लिया? अभी तो मुझे पढ़ना है और मामा ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो एकदम रुहासी हो गई। कहा तो है, मामा ने तकरीबन इनकार ही किया है कि कम से कम 2 साल तक शादी का सोचे भी मत, मगर पप्पो बज़िद हैं। उनका कहना है कि जब हारून अंकल वगैरह दिन तय करें तो इस मसले को भी ज़ेर गौर रखें। तो मेरा क्या होगा? मेरी पढ़ाई? वही तो मामा ने पापा से बात की है, वो भी उलझ गए हैं। पप्पो का अंदाज हतमी है। जिस तरह अचानक के रिश्ते की बात चली है और अब अचानक शादी की बात। सच बताऊं तो मैं खुद उलझ गई हूं। मना कर दो मामा को, इस तरह सोचें भी मत। अभी तक मैं इस एंगेजमेंट को कबूल नहीं कर पाई, कहाँ शादी? जरिश को हौल उठा। हरगिज नहीं, मामा पापा को खुद एहसास होना चाहिए। अभी तो मेरी एज ही क्या है, फिर सात भाई? इम्पॉसिबल। मुझे अभी अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, कम से कम मास्टर तो हो। मेरा भी यही ख्याल था। खैर, देखते हैं क्या होता है। सच बताऊं, मामा पापा उस हादसे के बाद से बहुत मोहतात हो गए हैं। सुमान अहमद के साथ जिस तरह तुम्हारा नाम उछाला गया है, ये मंगनी भी सिर्फ एक ज़ाब्ते की कार्रवाई थी। पापा तो सिरे से इस रिश्ते को कबूल करने पर भी राजी न थे, मगर पप्पो के समझाने पर वो माने थे। बज़ाहिर लोगों की ज़ुबानें तो बंद हो गई हैं, मगर जब तक बाकायदा शादी तय नहीं हो जाती, मामा पापा उस तरह शशुपंज में मुब्तला रहेंगे। हो सकता है पप्पो के दबाव डालने पर मामा पापा मान भी जाएं कि अब बात सिर्फ तुम्हारी कम उम्री या स्टडी इनकम्प्लीट रहने की नहीं, लोगों की गंदी सोच को बदलने की है, इस सारे प्रोपेगेंडे का जवाब देने की है, एक ज़ाब्ता कार्रवाई से साबित करके, एक शरई कानूनी ताल्लुक जोड़ के। तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों सज़ा दी जा रही है? वो रो ही तो दी थी। जरिश प्लीज़, अभी तो न जाने क्या कुछ सहना पड़े ज़िंदगी में। तुम्हें ये सब इसीलिए बता रही हूँ कि तुम अभी से जहनी तौर पर तैयार रहो, तुम्हें कोई जहनी धचका ना लगे। यह सिर्फ अल्टीमेटम है। मामा पापा जिस तरह उलझ गए हैं, ये जाहिर करता है वो भी पप्पो की सोच को किसी हद तक दुरुस्त समझ रहे हैं। जरिश कुछ नहीं बोली थी, उसी तरह नीर बहाती रही थी। नौशी कुछ देर उसके पास बैठी उसे तसल्ली दिलासे देती रही थी। नौशी तो सोने चली गई थी, मगर वो सारी रात ना सो सकी थी। अगले दिन कॉलेज जाना था।
दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर वो बड़ी पशमुर्दगी से तैयार हुई थी। कॉलेज में सारा दिन बड़ा अजीब गुजरा था, उलझते हुए, अपने आप से लड़ते हुए। फराह से कई बार सामना हुआ और हर बार वो उसे नज़रअंदाज करके गुजर गई थी। ऐसा तो कब से चल रहा था, मगर फराह के सलाम दुआ के अलावा जो भी बात करती थी वो जवाब ज़रूर देती थी। चंद दिन से वो फराह के साथ नॉर्मल बिहेव कर रही थी, मगर अब अचानक रात की बात सुनकर वो फिर से उसी अजियत से दो चार हुई थी, जो सिर्फ एक हादसे की वजह से थी, जिसने पूरी जिंदगी का मंजरनामा बदल दिया था। आखिरी पीरियड फ्री था। वो कॉलेज के लॉन के कदर अलग थलग कोने में आ बैठी। वो इतनी कुनूतियत पसंद नहीं थी, मगर अब दिल चाहता था कि किसी कोने खुदरे में जा छुपे जहां से वो किसी को नजर न आए। बेकसूर होते हुए भी मुजरिम बन गई थी, मामा पापा के लिए एक मुसलसल टेंशन का सबब। जरिश। फराह उसे ढूंढते सारे कॉलेज का चक्कर लगा चुकी थी। उसे यहाँ बैठे देखकर वो उसकी भरपूर लाताल्लुकी के बावजूद भी खुद को उसको कलाम करने से रोक ना पाई थी। जरिश ने सिर्फ एक निगाह की थी। दुख, अजियत, मलाल, बेबसी, क्या कुछ न था उन आंखों में। फराह का दिल कट सा गया। वो उसके करीबी घास पर बैठ गई। परेशान हूँ, झिझकते हुए सवाल किया था। जरिश ने अपने सामने खुली फाइल बंद कर दी, मगर बोली नहीं थी। उसी तरह लाताल्लुक रही। प्लीज जरिश, मुझसे इस तरह बिहेव मत करो। हम तो कजन से बढ़कर दोस्त थी। क्या तुम मुझे भी सजा दोगी उस जुर्म की जो मैंने किया ही नहीं? आज सारा दिन वो जरिश के पुरमलाल अंदाज को जायजा लेते। अब तो अंदर से शल हो चुकी थी। और जो सजा मैं झेल रही हूँ वो तलखी से भरपूर आवाज थी। फराह का दिल गम से फटने को था। मैंने तो कभी जिंदगी में गम की बात की ही न थी। मुझे पता ही नहीं चला कि अजियत किसे कहते हैं। मगर तुम्हारी वालदा ने मेरे साथ जो कर दिया है, वो सारी उम्र मुझे अजियत की भट्टी में झोंक देने को काफ़ी है। निदामत तो शर्मिंदगी होने लगती है मुझे खुद पर। मैं क्या थी, क्या होकर रह गई हूँ। काश ये आगाही जो मुझे अब मिली है, ये इस बड़े नुकसान से पहले मिल चुकी होती तो अजियत इतनी ज़्यादा ना होती। उसके अंदर तो गुबार भरा हुआ था, तो उन दो तेज मौजों से बिफरा तूफान था जो उसे जब्त की हर हद क्रॉस कर जाने को उकसा रहा था। जरिश प्लीज़, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। फराह का बस नहीं चल रहा था कि उसके सारे दुख लेकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट सजा दे। तुम्हारे माफ़ी मांगने से क्या होगा भला? तुम्हारी वालदा भी आकर अपने जुर्म की तलाफी की कोशिश कर लें, जो कि क़यामत तक मुमकिन नहीं। तब भी मेरे किरदार, मेरी ज़ात पर उछाला गया कीचड़ मेरी पाक दामनी से कैसे साफ होगा? जरिश की आंखों से आंसू बहते चले गए। जरिश, सुमान भाई बहुत संजीदा हो गए हैं। काम काम काम, उन्होंने खुद को मशीन बना लिया है। अम्मी से वो बात नहीं करते, और घर में तो शायद संडे को ही नजर आ जाए तो बड़ी बात है। हमारा घर एक एक करके बिखर रहा है। मैं किस किस नुकसान पे रहूं? उसकी आवाज़ रुंध गई थी। जरिश ने कुछ खफा नज़रों से उसे देखा। इस सारे हादसे के बाद पहली मर्तबा फरा सुमान का जिक्र उसके सामने कर रही थी। जरिश को अपने जख्म हरे होते हुए महसूस हुए। प्लीज़, अगर तुम मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो फिर आइंदा कभी मेरे सामने ये नाम मत लेना। नफरत सी महसूस होने लगी है अब इस नाम से भी। कितना मना किया था मैंने उनको, मगर वो तो मुझे रुस्वा करने पर तुले हुए थे। अब तो उनको खुश होना चाहिए। मैं कितनी कमअकल वाक़ई हुई और उनकी चाल में आ गई। ये सब उनका कसूर है। अब तक ये जो कुछ भी हो चुका है सबके जिम्मेदार वो हैं। उन्हें मोहब्बत सूझी हुई थी और रुस्वा मैं होकर रह गई हूँ। फरह ने तड़प कर जरिश को देखा। सुमान अहमद की दीवानी कितना बदल चुकी थी। सिर्फ एक हादसे ने उसको सर तपा बदल दिया था। वो अजियत से होंठ को चल गई। फिर बाकी वक्त दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। कॉलेज ऑफ होते ही जरिश ने अपनी चीज़ें समेटी थीं। एक नज़र सर झुकाते घास के तिनके तोड़ती फराह को देखा। दिल के अंदर अपनी तुर्श रवि का मलाल जागा, मगर वो सख्ती से मुंह बंद कर गई। फराह से ज़्यादा नुकसान उसका था तो फिर वो नादिम क्यों होती? कभी कैसी दोस्ती और चाहत थी, मोहब्बत और खुलूस के कैसे जज्बात थे, मगर अब आंख से आंख मिलाना मुश्किल हो चुका था। निगाहें चार होती तो दिल में तकलीफ के खंडर आबाद हो जाते थे। वो खामोशी से पूर्ण मांग को साफ करते वहां से निकल आई थी। ड्राइवर गाड़ी समेत मौजूद था। जरिश, अपने नाम पर वो चौंकी थी। उसकी क्लास फेलो उसके करीब चली आई थी। जरिश, आज मेरी गाड़ी लेने नहीं आएगी, तुम भी हमारे रोड से ही गुजरोगी। अगर तकलीफ ना हो तो ड्रॉप कर दोगी? सारा ने झिझकते हुए कहा था, तो वो मुस्कुरा दी। हद करती हो भी तुम भी तकल्लुफ की। जरूर, तकलीफ कैसी उसमें भला? प्लीज आओ। उसने मुस्कुरा कर कहा तो वो तशक्कुर बजा लाई। सायरा उसकी क्लास फेलो थी। इन चंद दिनों में फराह के बाद गैर महसूस अंदाज में वो उससे मानूस हुई थी। बेतकल्लुफी बढ़ी थी। फिर सायरा कौन सा अनजान थी? पापा के किसी फ्रेंड की बेटी थी। सो फराह के बाद उसकी तरफ तवज्जो मबजूल करने में हिचकिचाई नहीं थी कि ये लड़की डॉक्टर जफर की चचाजाद भी थी। रास्ते में सायरा ने एक अकेडमी के सामने गाड़ी रोकने को कहा था।
आई एम सॉरी यार, तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। दरअसल इस एकेडमी में मेरे एक कज़न होते हैं। उन्हें मैंने कुछ नोट्स का कहा हुआ था, मुझे अशद ज़रूरत है। सुबह फ़ोन पर कह रहे थे मैं वापसी पर एकेडमी का चक्कर लगाते ले जाऊँ। ड्राइवर के गाड़ी रोकने पर वो शर्मिंदा सी वजाहत दे रही थी। तुम तो ख्वामख्वाह शर्मिंदा हो रही हो। तुम जाकर नोट्स ले आओ, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम भी साथ चलो। जरिश ने इनकार करना चाहा, मगर फिर बदतमीजी का सोचते राजी हो गई। अकेडमी बहुत शानदार थी। एंट्रेंस से ही सायरा अपने कज़न का पूछती अंदर चली आई थी। राहदारी में कई चेयर्स दीवार के साथ सेट थी। तुम अपने कज़न का पता कर लो, मैं इधर बैठती हूँ। जरिश इधर ही टेक गई थी। सायरा सर हिलाती अंदर चली गई थी। वो खामोशी से इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लेती रही। 5 मिनट बाद सायरा एक खास से खुश शक्ल हैंडसम से लड़के के साथ आती दिखाई दी तो वो उठ खड़ी हुई। सॉरी जरिश, तुम्हें वेट करना पड़ा। उसके करीब पहुंचते ही वो फौरन स्टार्ट हुई थी। वैसे इनसे मिलो, ये मेरी फुप्पो के बेटे हैं, नवाज भाई। उससे मुस्कुराकर अपने कज़न का तारुफ करवाया। और नवाज भाई, ये जरिश है, जिसकी मैं आपको बातें बताती हूँ। हमारे कॉलेज की जीनियस तरीन लड़की है। उसने खासे नखरे से जरिश को देख कर कहा तो जरिश झीम सी गई। एक पल को मुकाबिल साकित हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। जरिश ने इखलाक निभाया तो सायरा के कज़न का सक्ता टूटा। उस शख्स ने सिर्फ गर्दन हिलाने पर ही इक्तफा किया था। उसकी निगाहें अभी भी जरिश पर थी। चलें सायरा। वो अपने इर्द गिर्द से यकसर बेनियाज सायरा की तरफ मुतवज्जे थी। सर को ब्राउन स्कार्फ से जकड़े, कंधे पर कॉलेज का जुनिया ओढ़े। कॉलेज यूनिफॉर्म में वो उतनी ही दिलकश और भीगी पलकों की नमी समेत उतनी ही साहिर लग रही थी कि मुकाबिल ठिठक सा गया। जरिश के रूप में उसके सामने कोई जीता जागता वजूद आ खड़ा हुआ था। अच्छा नवाज भाई, थैंक्स। सच्ची मुझे इन नोट्स की अशद ज़रूरत थी, मगर मैं इंशाल्लाह कल ही वापस कर दूंगी। सायरा के कहने पर उस शख्स ने अपनी निगाहों का जाविया बदला था, मगर अंदर तो बेचैनी ने सर उभारा था। यादों ने ऐसी करवट ली थी कि दिल एक आन में गम से फट पड़ने को था। वो दोनों जा चुकी थीं। शीशे के उस पार वो दोनों गाड़ी में बैठकर नजरों से ओझल हो चुकी थी, मगर नवाज फारूक तो अपनी जगह साकित हो गया था। जरिश के रूप में उसे जो चेहरा याद आया था, उससे वो खुद ठुकरा कर आया था। उसी चेहरे को जो दिल में बसता था, उस वजूद को जो आज भी भूलने पर नहीं भूलता था। जरिश की आवाज़, उसका बेपरवाह अंदाज और सबसे बढ़कर चेहरे का तासुर उसे नवेरा एहसान की ज़ात को याद दिला गया था। उधर नौशी की शादी के दिन तय हुए तो उधर नफीसा बेगम मुसलसल अजियत का शिकार होने लगी। साद ने मुसलसल राब्ता ख़त्म किया हुआ था। वो सिर्फ उसे सूरत पाकिस्तान आने पर आमादा था कि अगर वो जरिश से रिश्ता ख़त्म करके फ़रह के लिए बात करें तो। वो दूसरी कोई बात सुनने को तैयार ही ना था। पाकिस्तान में जो कुछ हो चुका था वो साद को बताने वाला तो ना था। फिर साद तबीयत का कुछ मुख्तलिफ था। अपनी ज़ात के लिए बड़ा पजज़ब था। वक़ार अगर धीमे मिजाज का साबिर इंसान था तो वो खुद पसंद, अपनी ख्वाहिशों को फ़ौक़ियत देने वाला इंसान था। घर भर का लाडला होने की वजह से कुछ ज़्यादा ही खुदसर और ज़िद्दी भी हो चुका था। उन्होंने उसकी अब तक हर जिद मानी थी, हर बात, हर ख्वाहिश पूरी की थी, मगर अब की बार वो जो कुछ मांग रहा था वो उनके बस की बात ना थी। मगर वो कुछ भी समझने पर आमादा ही ना था। सिर्फ एक ही जिद थी, फ़रह के लिए बुलाएंगी तो वापस आऊँगा, वरना नहीं। हादिया 2 दिन से सऊद अहमद के यहाँ थी। उन्होंने कई बार साद के नंबर पर कॉल करने की कोशिश की थी, मगर वो हर बार कॉल डिस्कनेक्ट कर देता था। अब की बार उन्होंने कोशिश की तो कॉल रिसीव कर ली गई। अस्सलाम वालेकुम। रूठा नाराज़गी से भरा लहजा था। नफीसा बेगम के दिल को कुछ हुआ, मगर साथ तसल्ली भी कि वो बात करने पर आमादा तो हुआ। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने बहुत मोहब्बत से कहा। खैरियत? अक्खड़ लहजा दिल तड़पा गया। तुम कॉल रिसीव ही नहीं करते, और करते भी हो तो इतना जरम्बी लहजा। माँ हूँ तुम्हारी, इतनी दूर परदेश में बैठे हो, हर वक्त दिल तुम्हारी तरफ ही अटका रहता है, फिर भी अजनबियों की तरह बात करते हो। उनकी आवाज़ भुर्रा गई तो खामोश हो गई। अम्मी प्लीज़। दूसरी तरफ से साथ पर आवाज़ का असर हुआ था। फ़ौरन लहजा बदला। कब आ रहे हो पाकिस्तान? बताया तो है, जॉब कर ली है मैंने, अभी कोई इरादा नहीं। तो कब इरादा बनेगा? देखो साद, मैं बहुत परेशान हूँ। सऊद ने नौशी के दिन तय कर दिए हैं। अपनी तरफ से मैंने सऊद से कह दिया है कि तुम पाकिस्तान लौट रहे हो और मैं जल्द अज जल्द जरिश को अपने घर लाना चाहती हूँ। उन्होंने अपने आप को मजबूत करके साद को इतला दी थी, मगर वो तो सुनते ही फट पड़ा। अम्मी खुदा के लिए क्या कर दिया है आपने? मैं नहीं आऊँगा। मुझ पर इस तरह दबाव मत डालें। मैं फ़रह के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। वो गुस्से से बोला था। नफीसा बेगम के अंदर इश्तियाल बिखरा। साद, मुझे मत तकलीफ दो। मैं ज़ुबान दे चुकी हूँ और फ़रह के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती।
अगर जरिश का मामला ना होता तब भी ताहिरा कभी ना मानती इस रिश्ते पर। महराज भाई से पता चला था कि ताहिरा का इरादा कैसरा के यहाँ असजद से फरह का रिश्ता तय करने का है, और तुम जानते हो ऐसे मामलों में जीत हमेशा ताहिरा की ही हुई है। तो आपने कब कोशिश की है? एक दफ़ा उनके यहाँ जाएं तो सही। मैं गई थी, तुम्हें शायद याद हो। एक दिन जब फरह को बुखार वगैरह था मैं गई थी, सईद अहमद से बात की थी। उससे टाल दिया था कि अभी फरह स्टडी में मसरूफ़ है। बेटों की बात दूसरी है, मगर बेटी का रिश्ता वो इतनी जल्दी तय नहीं करेगा। आप जोर तो देती, कोशिश तो करती, मगर आपने कुछ भी ना किया। मैं उसके बाद जब भी सईद अहमद से मिली यही बात की, मगर उसने हर बार अभी चुप रहने को कहा। तो इंतज़ार कर लेते, मैं कौन सा बूढ़ा हो रहा था, और जरिश तो अभी इमेच्योर सी है। उससे मैं अभी तक एक बच्ची तस्वुर करता हूँ, और आपने फैसला तक कर लिया। साद, मैं मजबूर थी, वो जिद हो गई थी। जरिश के हवाले से उन्होंने साद को कुछ भी न बताया था। अपने बेटे की आदत से बाखबर थी। यकीन था कि सुमान की पसंदीदगी का सुनकर तो वो कभी मानेगा ही नहीं। क्या मजबूरी थी कि इस कदर आनन फानन ये सब तय कर लिया और मेरे किसी फैसले को अहमियत ही ना दी। तुम जानते तो हो ताहिरा को, उसकी आदत को। सईद अहमद की ख्वाहिश से भी बाखबर हो कि वो सुमान के लिए जरिश का रिश्ता कई बार सऊद अहमद से मांग चुका था। हाँ तो फिर? दूसरी तरफ साद उलझा। ये तो वो भी अच्छी तरह जानता था। ताहिरा ऐसा नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ कैसर की ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी फौजिया सुमान के लिए आए। बस यहाँ हर रोज़ नया ड्रामा होता था। ताहिरा तो सब कुछ भूल बैठी है, जो बहन कहती है करती है। वो जरिश के रिश्ता न लेने की मुखालफत में थी, जबकि सईद अहमद ज़ैद में था। फिर सुमान ने भी बाप की बात मानी तो ताहिरा ने गुस्से में आके वही घटिया चाल चली जो वो हादिया के सिलसिले में कर चुकी थी। ओह माय गॉड! खामोशी से सुनता साद एकदम शशदर रह गया। उसके आसाब पर एक बम फटा था गोया। वेरी सैड। सऊद अहमद ने बहुत असर लिया है इस वाक़े का। जरिश की तबीयत भी तुम जानते हो। ताया और उसकी फैमिली से किस कदर अटैच है। सुमान से उसकी बेतकल्लुफ़ी को ताहिर और कैसरा ने मिलकर गलत रंग दिया है। सऊद को जब सारी सूरत हाल का इल्म हुआ तो एंजाइना का अटैक हुआ। बड़ी मुश्किल से हालात संभले हैं। कई दिन सऊद अहमद अस्पताल रहा। उस दौरान कैसरा की ज़ुबानी ख़ानदान भर में जरिश के हवाले से जो चर्चा हुआ वो अलहदा, और सऊद की आयत को क्या आते थे, जिगर छलनी कर जाते थे। ऐसे हालात में तुम ही बताओ मैं क्या करती। मेरे लिए तो मेरी भतीजियाँ ही अहम है। फरह तो मेरी भी ख्वाहिश थी, और जरिश वो तो जीते जी मार देने वाली बात है। ऐसे आलम में भाई का सहारा न बनती तो क्या करती। हादिया की बात दूसरी थी कि रिश्ता वगैरह बड़ों में तय था, मगर यहाँ तो सिरे से कुछ था ही नहीं। लोगों में जो शोशा हुई है वो अलहदा। सऊद तो मौत के मुंह से समझो वापस आया है। वो रो रही थी। वो दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी छा गई थी। साथ जो भरा बैठा था सब कुछ सुनकर हैरान रह गया था। इतना कुछ हो चुका था वहाँ, और वो बेखबर था। मैं जुबान देकर अब वापस ले लूँ, यूँ कहो अपने हाथों से अपने भाई को कब्र में उतारूँ। मुझसे ये सब नहीं हो रहा। अपनी माँ की मजबूरी समझो। ऐसे अगर आलम में मैं भी खुद गर्ज बन जाती तो फिर रिश्तों का मान भी टूट जाता। सईद अहमद तो खुद नादिम है अपनी बीवी, अब उसके बस में नहीं। ताहिरा अब समझाने बुझाने की हद से निकल चुकी है। तुम ही बताओ मैं किस मुंह से सऊद को मना करके फरह का हाथ मांगूंगी कि मैंने ताहिरा और कैसर की साजिश को गलत तैयार करार देने के लिए अपने हाथों से तुम्हारे नाम की अंगूठी जरिश को पहनाई है। खानदान भर में मिठाई बांटी के लोगों के जहनों में कोई बात ना रहे। अब कुछ नहीं हो सकता। आपने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? कई सानियों बाद थकी थकी सी आवाज़ सुनाई दी। मुझे डर था कि कहीं तुम जज्बाती होकर कोई इंतहाई फैसला न कर लो। मामू जान की तबीयत अब कैसी है? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम है। शुरू में काफ़ी सीरियस कंडीशन रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक होता गया है। सऊद ऑफिस जाता है। अब तो नौशी की बात भी तय हो गई है। दोनों बहनों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। एग्ज़ाम्स के फ़ौरन बाद नौशी की शादी की तारीख रखी है। अपनी बीमारी की वजह से सऊद अब जल्द अज जल्द नौशी की फुर्सत से बुगदोश होना चाहता है। साद, सब कुछ तुम्हारे सामने है। मैंने तुम्हें सब बता दिया है। ठंडे दिलो दिमाग से ज़रूर सोचो, मगर ये ख्याल रखना तुम्हारी माँ की इज्जत का सवाल है। फरह तो मेरी भी ख्वाहिश थी, मगर जरिश को भी तबाह होते नहीं देख सकती थी कि वो भी मेरे दिल का टुकड़ा है। आखिर में उनकी आवाज़ नमालूद हो गई थी। तुम यहाँ नहीं होते। तुम यहाँ होते, सब हालात आंखों से देखते तो तुम्हारा भी यही फैसला होता। तुम्हारी बहनों बहनोइयों बाप भाई सबके मशवरे पर रिश्ता तय किया है। सब कुछ सोच समझ कर सिर्फ जज्बाती में भाई के सामने झोली नहीं फैलाई थी। सब हालात का तज्जिया किया था। तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारे एहसासात कभी सोचा था मेरी जान। उनकी आवाज़ में आंसुओं की लर्जिश थी। दूसरी तरफ मौजूद साद के दिल पर बड़े अजीब अंदाज में असर हुआ था। अम्मी जान, प्लीज़ रोए नहीं। मेरी ख्वाहिश, मेरे एहसासात आपसे बढ़कर तो नहीं। प्लीज़ रोए नहीं।
وہ جتنا بھی اکھڑ مزاج اور ضدی ہو مگر ماں کو روتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور ماں بھی وہ جس نے ہمیشہ ہر جائز و ناجائز میں ساتھ دیا تھا۔ ایسے عالم میں وہ کیسے اپنی ضد پر قائم رہ پاتا، جبکہ اب تو ماں کی زبان اس کی عزت کا سوال تھا۔ امی پلیز روئی نہیں، آپ مجھے یہ سب پہلے بتا دیتی تو میں یوں ریئیکٹ ہی نہ کرتا۔ بہرحال مجھے کچھ وقت دے سنبھلنے کے لیے، اپنے آپ کو سمجھانے بجھانے کے لیے۔ ابھی یہ سب کچھ بہت تکلیف دہ ہے۔ میں سعود سے شادی کی بات کر چکی ہوں سعد کا ایک دم تھکا تھکا انداز انہیں تڑپا گیا تھا۔ امی پلیز آپ ابھی مجھ سے اس موضوع پر بات نہ کریں تو بہتر ہے، اس نے فوراً ٹوک دیا تھا۔ اچھا نہیں کرتی، مگر یہ تو بتاؤ پاکستان کب آ رہے ہو؟ ابھی جاب شروع کی ہے، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انداز صاف ٹالنے والا تھا، کہاں وہ آنے کو دن گن رہا تھا اور اب کہاں ٹالتا انداز۔ نفیسہ بیگم کے دل سے ایک ہوک اٹھے۔ تم تو پاکستان آ کر اپنا کلینک اسٹارٹ کرنا چاہتے تھے، کتنا عرصہ ہو گیا ہے تمہیں دیکھے ہوئے۔ اس فیصلے کی سزا مجھے یوں تو نہ دو، بس واپس آ جاؤ، مجھے کچھ نہیں پتا۔ امی جان پلیز، میں ابھی واپس نہیں آنا چاہتا، میرے لیے یہ سب کچھ ایک دم برداشت کرنا بہت مشکل ہے، میں پھر بھی سوچوں گا۔ واپس تو مجھے پاکستان ہی آنا ہے، یہاں کیا ہے میرا اپنا؟ آپ لوگ میرے اپنے سب وہیں تو ہیں، آپ لوگوں سے میں بھلا کٹ کے رہ سکتا ہوں۔ ساتھ کے ان جذباتی لفظوں سے نفیسہ بیگم کے دل کو بڑی طاقت حاصل ہوئی تھی۔ ایک دم یقین مستحکم ہوا تھا کہ اب کچھ بھی ہو ان کا بیٹا ابھی بھی ان کی مانتا ہے، ان کو اہمیت دیتا ہے۔ دل خوشی سے سرشار ہوا تھا۔ واجدہ بیگم چند دن اسپتال میں رہی تھی۔ بے شک انہوں نے ابھی چلنا پھرنا شروع نہیں کیا تھا، مگر مصنوعی ٹانگ کے سہارے وہ اب بغیر کسی سہارے اٹھ کر بستر پر بیٹھ جاتی تھیں۔ یہ اچھی خاصی امپروومنٹ تھی۔ رفعت باجی ابھی تک رکی ہوئی تھی۔ اماں گھر منتقل ہوئی تو شارق نے ان کے لیے فیمیل نرس کا بندوبست کر دیا، جو نہ صرف ان کی ضروری حاجات پہ مدد کرتی تھی بلکہ روز چلنے کی پریکٹس بھی کرواتی تھی۔ پھر رفعت باجی اور نویرہ دونوں خود بھی اماں کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ اماں تو اتنی ساری محبت اور توجہ پا کر دنوں میں تندرست ہو رہی تھیں۔ شارق زمان نے بے شک ظلم کمایا تھا، مگر وہ ان کے حق میں نویرہ کو اس گھر میں لا کر نیکی ہی کر گیا تھا۔ وہ تو گویا ساری زندگی کی فکروں سے آزاد ہو کر ہر وقت اپنے بچوں کے لیے دعاؤں میں کوشاں رہتی تھی۔ شارق ہنی مون ٹرپ کے لیے دبئی جانا چاہتا تھا، مگر نویرہ نہیں مانی تھی۔ اماں رفعت باجی دونوں نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ چلی جائے، مگر ہمیشہ شارق کے سامنے اپنی انا کو جھکا دینے والی نویرہ نے ان کی یہ بات نہیں مانی تھی۔ مجبوراً شارق کو کہیں جانے کا پروگرام ہی کینسل کرنا پڑا تھا۔ نویرہ کو شارق کے اس پسپائی سے بڑی خوشی حاصل ہوئی تھی تو یہ بھی ایک خود غرضی ہی، مگر وہ مطمئن ہی تھی۔ بے شک وہ شارق کے گھر آباد ہو چکی تھی، بے شک وہ اسے اپنا شوہر تسلیم کر چکی تھی، مگر وہ اس کی دھاندلی، اس کے ظلم کو نہ بھولی تھی۔ شارق کے ساتھ اس کا رویہ ویسا ہی تھا، کبھی مصلحت آمیز اور کبھی ڈٹ جانے والا۔ اول روز سے اس نے جو اسے اپنے برے رویے کا احساس دلانے کا تہیہ کیا ہوا تھا اس پہ قائم تھی۔ 3 دن سے وہ اماں کے ہاں آئی ہوئی تھی۔ اماں اسے کچھ کوریدنے کے بجائے ہر بار شارق کے ساتھ نباہ کرنے کی صلاح ضرور دیتی تھیں۔ نبیلہ بھابھی بھی کچھ نہ کچھ نصیحت ہی کرتی تھیں، مگر نبیل بھائی اس گھر میں وہ واحد شخص تھے جو اسے دیکھ کر کچھ نہیں کہتے تھے، حتیٰ کہ اسے مخاطب بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کے دل میں ابھی تک شارق زمان کو مزہ چکھانے کی آگ دہک رہی تھی۔ ساجد بھائی اور زہا بھابھی پچھلے ہفتے ہی واپس چلے گئے تھے، وہ صرف شادی میں شرکت کے لیے پاکستان آئے تھے۔ اب تو شادی کے ہنگامے سرد پڑے بھی کئی دن گزر چکے تھے۔ دوپہر کو رفعت باجی کا فون آیا تھا، انہوں نے اسے واپس آنے کو کہا تھا۔ وہ ابھی چند دن قیام کرنا چاہتی تھی، مگر سپہر میں شارق کا بھی فون آیا تو اسے ماننا ہی پڑی۔ ہمیشہ کی طرح شارق زمان نے اسے صرف حکم دیا تھا۔ اس کے نزدیک یہ 3 دن اماں کے ہاں رہنے کو کافی تھے، وہ شام کو لینے آ رہا تھا۔ اماں اور بھابھی کو بتا کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ تیار ہونے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر اس گھر میں شارق زمان کے علاوہ واجدہ بیگم اور رفعت باجی بھی تھیں۔ نہا کر وہ نکلی تو بھابھی نے اسے زبیدہ چچی وغیرہ کی آمد کی اطلاع دی۔ اماں کہہ رہی تھی محتاط رہنا، چچی کچھ پوچھے تو بات سنبھال لینا۔ نصیحت کے ساتھ اسے سمجھا کر کمرے سے نکل گئی تو نویرہ کا کوف سے برا حال ہونے لگا۔ شادی کے بعد سے ہر ایک کی زبان پر صرف ایک ہی سوال تھا، خوش تو ہو، شارق کیسا شوہر ہے؟ نواز کے حوالے سے کچھ کہتا تو نہیں؟ اور وہ ہر بار ایک نئی اذیت سے دوچار ہو جاتی تھی۔ چچی کے ساتھ رمشا اور رضا بھی تھا، وہ سب سے خوش دلی سے ملی تھی۔ تم کہاں ہوتے ہو رضا؟ کبھی نظر ہی نہیں آتے۔ واجدہ اماں کے اسپتال ایڈمٹ ہونے کے دوران ان سب سے ہی ملاقات ہوتی رہتی تھی سوائے رضا کے۔ اب بھی سب سے سلام دعا کے بعد وہ رضا کے سامنے ہی کوشن پر بیٹھ گئی تھی۔ رضا نے ایک نگاہ ڈالی۔ پینک لباس میں نکھری نکھری سی نویرہ نے اس کے احساسات کو بڑی بری طرح مجروح کیا تھا۔ میں تو اسی شہر میں ہی ہوتا ہوں، آپ ہی شاید کچھ مصروف ہو گئی ہیں۔ ایک شکوہ سا تھا۔ اچھا، وہ ہنس دی تھی۔
नवेरा की ये मुदर हंसी उसके आसाब पर एक बोझ साबित हुई थी। बड़े कमजोर लग रहे हो, खैरियत है ना? कहीं बीमार मेवार तो नहीं हो गए? बड़े गौर से रजा को देखा। रिमशा को बड़ी तपिश का एहसास हुआ। वो रजा के मामले में भला कहाँ चूकने वाली थी। एक जलन का एहसास पैदा हुआ। नहीं, ठीक हूं मैं। रजा फौरन संभला। रिमशा के होंठों पर इस्तेहजाई मुस्कुराहट मचली तो रजा अपना पहलू बदल कर रह गया। आप सुनाएं, क्या हो रहा है आजकल? रेमशा को नजरअंदाज करते उसने नवेरा की खुद से तवज्जो हटानी चाहिए। ये भी बड़े दिल गुर्दे का काम था। वो तो यूं ही अम्मा और रेमशा के साथ उनको छोड़ने चले आया था। यहीं आकर इल्म हुआ था कि नवेरा भी इधर ही है। वो तो फौरन छोड़कर जाने को था। नवेरा का नाम सुनकर दिल देखने को मचल उठा था और अब देख लेने के बाद दिल की वहशतों में और ही इजाफा हुआ था। क्या होना है? सारा दिन घरदारी और बड़ी अम्मा की देखभाल में गुजर जाता है। आजकल इधर हूं तो फरागत ही है। चची जुबैदा अम्मा से बातों में मसरूफ रही थी। अम्मा के इशारा करने पर वो उठकर किचन में भाभी का हाथ बटाने आ गई थी। अम्मा उसे किसी रिश्तेदार के पास कम ही बैठने देती थी कि ख्वाम ख्वाही कोई बात निकल गई तो दिल खराब होंगे। नवाज का इनकार एकदम यूं शारिक के साथ रुखसती कुछ भी तो भुलाने वाला ना था। चाहे कोई कितना ही अजीज क्यों ना हो, ये जिक्र जरूर चलता था और इस जिक्र में सिवाय अजियत और तकलीफ के और था ही क्या। और अम्मा की पूरी कोशिश होती थी कि पिछले तमाम हालात और वाक़यात को भुलाकर नवेरा शारिक की मौजूदा हैसियत को कबूल करे कि अब सारी उम्र उसी के साथ ही तो रहना था। फिर कुछ कहकर कुछ पूछकर ख्वाम खा नवेरा का दिल क्यों खराब किया जाए। मगरिब से कुछ पहले नबील भाई भी घर आ गए थे और जब शारिक के आने का पता चला तो उनका गुस्सा हद से बढ़ा था। शादी के बाद पहली दफ़ा शारिक उनके यहाँ आ रहा था। तुम फ़ोन करके उस शख्स को मना कर दो कि वो यहाँ ना आए। अगर उसने हमारे घर की दहलीज भी पार की तो मैं उसे शूट कर दूंगा। वो किचन में ही थी जब गुस्से से खोलते नबील ने उसका बाजू पकड़कर उसे वार्न किया था। क्या करते हैं नबील? प्लीज़ आहिस्ता बोलिए। चच्ची वगैरह सब बाहर हैं। आपको इसलिए तो नहीं बताया कि इस बेचारी की शामत ले आए। नबीला भाभी फौरन दरमियान में बोली थी। अगर ही उसे मना नहीं कर सकती तो ये भी मत आया करे। इसे देखता हूं तो मेरा खून खोलने लगता है। जी चाहता है हर हद से गुजर जाओ। नवेरा तो शशदर रह गई। इतना गुस्सा, इतनी नफरत। प्लीज़ नबील भाई, मैं खुद उसके साथ नहीं गई थी। आप लोगों ने मुझे उसके साथ रुखसत किया था। अब मुझको इल्ज़ाम क्यों दे रहे हैं? सारा कसूर तुम्हारा है, बेधड़क कहा गया था। नबील, भाभी ने गुस्से से टोका तो नवेरा थक रह गई। नबील भाई? आज नबील की खामोशी टूटी थी। उसके अंदर के गुबार ने राह पाई थी। ये उस शख्स की तरफ से मशकूक थी। उसने अपने घर में उसके साथ जो भी करना चाहा हमें बताती। हम मर नहीं गए थे। इसकी चुप, इसकी शय ने उसे हर हद पार करने पर उकसाया था और हम इतने भी बेगैरत थे कि उसके हाथों कठपुतली बनते चले गए। जी चाहता है इसके साथ साथ अपने आप को भी गोली से उड़ा लूं। नबील का गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। नवेरा बेयकीनी से मुंह पर हाथ रखे देखी गई। ये सारे इल्ज़ाम भी सहने थे, भाई की बेइतनाई भी देखनी थी। नबील, क्या बात है? अम्मा की आवाज़ पर नवेरा जैसे होश में आई थी। बेयकीनी से नबील को देखती अम्मा को देखने लगी, जो शायद नबील की आवाज़ सुनकर ही अंदर आई थी। अम्मा, शारिक को कहीं वो यहाँ ना आए। अगर उसने हमारे घर की दहलीज भी पार की तो मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। नवेरा को देखा जो आंसू रोकने की कोशिश में थी। नबील, आहिस्ता बोलो। अब जो हो चुका है उस पर मातम करने से कुछ हासिल नहीं। अपने जज्बात पर कंट्रोल करो। अब ये मत भूलो शारिक तुम्हारा बहनोई भी है। जैसा भी है, जो भी कर चुका है, अब हमें हालात के मुताबिक चलना होगा। उन्होंने धीमी आवाज़ में समझाया तो वो भड़क उठे। नहीं अम्मा, मैं आपकी सब कस्मों को तोड़ दूंगा। अगर उसने यहाँ कदम भी रखा तो ये समझा दें उसको भी। नवेरा की तरफ इशारा करते वो गुस्से से पैर पटकते अपने कमरे की तरफ चले गए थे। कितनी अजरबियत और बेहिसी थी नबील के लहजे में। नवेरा तो अभी तक सकते में थी। शारिक जुमान को नबील भले कुछ भी कह लेता, मगर उसको जो मौरद इल्ज़ाम ठहराया गया था वो कट सी गई। वो तेजी से मुंह पर हाथ रख के किचन से बाहर भागी थी। नवेरा। अम्मा तो इस सूरत हाल से घबरा गई थी। नवेरा को पुकारा मगर वो सुनती तो रुकती भी। उसका रुख बाहर की तरफ था। वो तेजी से बाहर निकली थी मगर उसे ठिठक जाना पड़ा था। किचन के बाहर सहन की तरफ खिलती खिड़की के पास खड़ा रजा हमीद साकित रह गया था। पता नहीं वो क्या कुछ सुन चुका था। वो साकित सा खड़ा था। उसकी आंखों में ऐसा तासुर जरूर था कि नवेरा चौंकी थी। नबील भाई क्या कह रहे थे? नवेरा को लगा उस जैसे उसके कदमों तले से जमीन निकल गई हो। वो लर्ज गई थी। इससे पहले कि वो संभलती, फिजा में बिखरती गाड़ी के तेज हॉर्न की आवाज उसे मतुहश कर गई थी। इतने सारे लोगों में तमाशा बन जाने की एहसास नहीं, उसकी आंखों में मिर्चें सी भर दी थी। शारिक जुमान आ चुका था। उसकी गाड़ी का हॉर्न गेट खुलने का मुंतजर था।
हॉर्न की आवाज़ सुनकर न सिर्फ नबील बाहर निकल आया था, बल्कि अम्मा और नबीला भाभी भी हिरासा से चली आई थी। नबील, बात सुनो, तुम अंदर चलो, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, मैं खुद देख लूँगी। अम्मा ने अंदरूनी खौफ पर काबू पाते नबील को रोका था। तो फिर आप उसे मना कर दें, वो अंदर नहीं आएगा। वही उखड़ा बेलिहाज अंदाज। अम्मा ने बेबसी से रज़ा को देखा, जो नासमझी में सबको देख रहा था। रज़ा, तुम नबील को लेकर उसके कमरे में चलो। जाओ। नवेरा, तुम भी अंदर। नबीला, तुम किचन देखो, मैं देखती हूँ कौन है। अम्मा ने सख्ती से सबको हुक्म चलाया। अम्मा, नबील ने कुछ कहना चाहा तो अम्मा ने टोक दिया। तो मेरा तमाशा बनवाना चाहते हो तो ठीक है, जाओ गेट खोलो, मैं भी तो देखूं मेरे बेटे को मेरी जुबान का कितना पास है। जाओ खोलो गेट। इतनी सख्ती से अम्मा ने कहा कि नबील गुस्से से लब भींच गया। आइंदा इसे समझा दें, वो यहाँ नहीं आएगा, चाहे मुझे नवेरा सहित ताल्लुक तोड़ना पड़े, मैं लिहाज नहीं करूँगा। नबील ने गुस्से से पांव पटकते अपने कमरे की तरफ पेशकदमी की थी। रज़ा तो लम्हा ब लम्हा हैरत से दो चार हो रहा था। ये सब क्या था, उससे ये मुआमा कभी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर उन सब का मकसद क्या था। उसने इस्तेफामिया नजरों से नवेरा को देखा, जो अभी तक वहीं खड़ी थी, अलबत्ता नबीला जा चुकी थी। रज़ा, जाओ गेट खोलो, शारिक होगा, उसे लाउंज में ही ले आना। अम्मा ने रज़ा से कहा तो वो गेट की तरफ चला गया था। नवेरा वैसे ही खड़ी रही। दिल तो अभी तक धक धक कर रहा था, ना जाने अगले लम्हे क्या होने वाला था। बेशक अम्मा के अंदर मामले को सुलझाने की सलाहियत बदरजा तब मौजूद थी, मगर वो मुसलसल खौफज़दा थी। शारिक अंदर चला आया था, रज़ा के साथ कदम से कदम मिला था। नवेरा को उस लम्हे बस नहीं चला था कि कुछ कर बैठे। क्या हर बार ही इस घर में आने पर वो ऐसी ही अजियत सहा करेगी? इस सवाल ने उसके अंदर उधम मचा रखा था। अम्मा के इशारा करने पर वो मुर्दा कदमों से अपने कमरे की तरफ हो ली थी। अपने कमरे में आकर भी उसका दिल हौल रहा था। नबील का आज का रवैया उसे अपनी ही नज़रों से गिरा गया था। बहनें तो भाइयों से हमेशा ही कायफ रहती हैं, फिर वो शारिक से मुतालिक नबील को बताती भी तो क्या। उसके लिए शर्म से मर जाने का मुकाम था। वो खुद शारिक की तरफ से बदजन थी, या शारिक ने उस रात अपने घर में जो भी किया था क्या वो बताने वाला था? वो तो खुद जहनी अजहर में मुब्तला हो गई थी और अभी संभल भी ना पाई थी कि नबील खुद ही बाखबर हो गया था। फिर वो कब और क्यों कर बताती, क्यों कर? वो मुसलसल रो रही थी। घर में इस वक्त चची, रिमशा और रज़ा भी थे। अगर नबील वाकई अपनी करनी पर आ जाए तो तमाशा तो पहले ही बन चुकी थी, रही सही कसर अब पूरी हो जाएगी। वो तो अपनों की नज़रों से ही गिर जाएगी। पता नहीं बाहर की सूरत हाल क्या थी, बाहर क्या हो रहा था। वो तो अपने अंदर अपने ही खौफ में मुब्तला ये मुश्किल वक्त टल जाने के लिए दुआ गो थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो चौंकी थी। घबरा कर दरवाजे को देखा। रज़ा हमीद को अंदर दाखिल होते देखकर उससे जल्दी से अपने रुखसार रगड़े। ये सब क्या हो रहा है? नबील भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो सवाल उसे उलझा रहे थे कुर्सी पर बैठते ही उसने लब कुशाई की थी। कुछ नहीं, बस नबील भाई और शारिक का आपस में थोड़ा बहुत क्लैश हो गया है, बस इसीलिए। नजरें चुराते उसने उसे टालना चाहा। कोई सीरियस बात है? वो बहुत मुतफक्किर था। नवेरा ने फिर चौंक कर देखा। रज़ा पूरी तरह मुतवज्जे था। एक पल को वो ठिठकी थी। ये परेशानी, ये मुतफक्किर अंदाज कुछ बेजा तो ना था? नवाज के इनकार के बाद रज़ा का रिश्ता भी आया था और यकीनन ये सारी कार्रवाई उसकी मर्जी से ही हुई होगी। पहली दफ़ा नवेरा के जहन में इस ख्याल ने गर्दिश की थी। उसने बगौर देखा। ऊंचा लंबा कसरती जिस्म का मालिक, डेल डोल में नबील या शारिक से किसी तो भी कम न था। वो तो उसे हमेशा एक कम उम्र चचाजाद समझ कर डील करती रही थी। फिर एज डिफरेंस और अपनी बड़ाई का ख्याल हमेशा रहा था कि कभी ऐसा वैसा ख्याल जहन को नहीं छुआ था। मगर अब रज़ा का मुतफक्किर अंदाज उसे चौंका गया था। बस नॉर्मल सी बात है। वो बिस्तर से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। रज़ा ने साफ महसूस किया कि नवेरा उससे कुछ भी डिस्कस करना नहीं चाहती थी। उसके अंदर अजियत की लहर उठी थी। मुंह धोकर कमरे में लौटी तो वो किसी गहरी सोच में था। रज़ा, नवेरा ने पुकारा तो वो सर उठाकर उसे देखने लगा। प्लीज़, तुम इस सब वाक़े का जिक्र किसी से भी नहीं करोगे, प्लीज़। वो हाथों को मुसलसल मसलती उसके सामने थी। आप बेफिक्र रहें, आपसे मुतालिक बात तो मैं पहले भी कभी किसी से नहीं करता, अब भला क्यों करूँगा? वो तो इस पर खुश हो गया था कि नवेरा ने उसे किसी काबिल तो जाना, चची जान और रिमशा से भी नहीं। उससे मज़ीद ताकीद की। आपने एतमाद किया है तो मुकम्मल करें। जवाबन बड़े खुलूस से कहा था। नवेरा को अपने कंधों से एक बोझ हटता हुआ महसूस हुआ। थैंक्स, तुम बहुत अच्छे हो। वो अब मुस्कुराई थी। इससे पहले कि जवाबन रज़ा कुछ कहता, शारिक ज़ुमान कमरे में दाखिल हुआ था। एक सेकंड को रज़ा को नवेरा के कमरे में देखकर चौंका था, फिर सर झटका। अस्सलाम वालेकुम। नवेरा को देखकर कदम बढ़ाए थे। नवेरा जो पहले एक अजाब से गुजर रही थी, शारिक ज़ुमान को देखकर फिर बिखर गई। बजाय सलाम का जवाब देने को उसने सख्ती से होंठ भींचे थे, साथ ही रुख भी बदला था।
रजा ने दोनों के दरमियान मौजूद रंजिश बड़ी शिद्दत से महसूस की थी, खास तौर पर नवीरा के चेहरे पर बिखर जाने वाले नागवारी और नफरत के तासुरात। क्या हो रहा है? महसूस तो शारिक भी कर चुका था, मगर पिछले तासुर को जाहिर करने को उसने खुश अखलाकी से रजा को देखा। कुछ खास नहीं, यूं ही बातचीत हो रही थी। नवेरा रैक में रखे बैग को खोलकर कुछ तलाश करने लगी तो रजा ने जवाब दिया था। उसे दोनों मियाँ बीवी का अंदाज बड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर नवेरा के साथ शारिक जुमान को देखते ही एक तकलीफ का भी एहसास हो रहा था। यह जलन नहीं थी, न ही हसद, बस अपने हार जाने की अजियत थी। ये एहसास गहरा हुआ तो फौरन घबरा गया। मैं चलता हूँ, देखूँ अम्मी वगैरह वापसी के लिए तैयार हुई हैं या नहीं। वो फौरन इस माहौल से निकल गया था। क्या बात है, तुम्हारा मूड किस लिए खराब है? रजा के जाते ही शारिक ने नवेरा को देखा। उसने झटके से सर उठाकर घूर कर शारिक जुमान को देखा। जी चाहा कि एक लम्हे में सारे हिसाब बेबाक कर ले। रोती सूझी आंखें। शारिक तो ठिठक ही गया था। क्या हुआ है? किसी ने कुछ कह दिया है? ये चेहरा क्यों खराब किया हुआ है? वो फौरन उसके करीब आया था। उसके चेहरे पर हाथ रखना चाहा तो उसने सख्ती से झटक दिया। बिप्रे अंदाज में पीछे हटी थी। हाथ न लगाओ मुझे। अंदाज उससे भी ज्यादा मुश्तिल था। क्यों? ऐसा कौन सा जुर्म सरजद हो गया है कि हाथ न लगाने की दफायत कर रही हो? जुर्म? शारिक जुमान, जो कुछ आप कर चुके हैं उसके लिए तो फांसी की सजा भी कम है। कम अकल बेगम साहिबा, आपको जिंदगी में शामिल करके सजा भुगत तो रही हैं। इस सजा के सामने तो फांसी की सजा भी कम है। हंसते हुए नवेरा के जहरखन लहजे को इग्नोर किया गया था। मेरे साथ ये ड्रामेबाजियां नहीं चलेंगी। कान खोल कर सुन लें शारिक साहब। शारिक की हंसी ने जलती पर तेल का काम किया था। वो तो फौरन भड़क उठी। ओके, नहीं करते ड्रामेबाजियां, हकीकत में रोमांस लड़ा लेते हैं। इधर आओ तो। दूर से ये तीखा जहरीला अंदाज हजम नहीं हो रहा। बाजू से पकड़कर फौरन अपने करीब किया। नवेरा तो मचल उठी थी। छोड़े मुझे, घिन आती है मुझे आपसे। उसकी नफरत का वही आलम था। नवेरा? वो शारिक जुमान के हिसार से निकलने की कोशिश में थी। उन अल्फाज पर उसने सख्ती से टोक दिया। उस सख्ती से टोकने पर अपने आप को संभालती नवेरा फिर रो दी। नबील के अल्फाज ने उसे बड़ा कम हौसला कर दिया था। बात बेबात आंखें बहने को बेताब थीं। आखिर कुछ बताओ, वो हुआ क्या है? रो रो कर इन खूबसूरत आंखों का सत्यानाश क्यों कर रही हो? शारिक जुमान हैरान हुआ था। वो जितना खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश में थी, आंसू बहते चले आ रहे थे। यार चुप भी करो या कोई वजह तो बताओ। उसे किसी भी तरह खामोश होते न देखकर वो झुंझला गया था। तुम खामोश होती हो या मैं बाहर जाकर किसी से पूछूं? अब की बार सख्ती से टोका तो नवेरा ने बड़ी शिकायती नजरों से उसे देखा था। अपने गिर्द फैले बाजुओं का हिसार तोड़ते मेज पर जा बैठी। क्या हुआ था? वो भी मुकाबिल बैठा था। कुछ नहीं। मेज पर निगाहें जमाए अपने मखसूस लाताल्लुक़ी वाले अंदाज में लौट गई थी। शारिक जुमान चंद पल उसे देखता रहा था। ओके, जब कुछ नहीं हुआ तो फिर रोना धोना भी बंद करो। तैयार हो जाओ। चची जान से मैं कह चुका हूँ, बस चलने की करो। वो उठ खड़ा हुआ था। नवेरा ने बेबसी से उसे देखा। वो उस शख्स के साथ जाना नहीं चाहती थी, मगर वो कितनी मजबूर थी। रही सही कसर नबील के रवैये ने पूरी कर दी थी। एक पल को जी चाहा के जाने से साफ इनकार कर दे। अब ऐसे क्या देख रही हो? जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास। चंद दोस्तों की मिक्स गैदरिंग है, मुझे वहां भी जाना है। उसे उसी तरह बैठे देखकर शारिक जुमान ने संजीदगी से टोका तो वो फट पड़ी। तो किसने कहा था मुझे लेने आने को? जहां जाना है आप चले जाए, मुझे नहीं जाना आज। उस शख्स की वजह से वो क्या से क्या बन गई थी। अपना आप मानना पड़ रहा था। रिश्ते नाते सब एक एक करके ये शख्स छीनता जा रहा था। नवेरा! नवेरा के यूं बेधड़क इनकार पर शारिक जुमान ने सख्ती से टोका। इस सब का मकसद क्या है? अब की बार गुस्से से घूरा। आपको भी उतनी ही तकलीफ से दो चार करना जिस कदर मैं सह रही हूं। आज सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मेरा भाई मुझसे हर नाता तोड़ने की बात कर रहा है। सिर्फ आपकी वजह से। नबील भाई को आपका वजूद इस घर में गवारा नहीं, और आपकी वजह से मैं। नवेरा का बस नहीं चल रहा था कि वो हद से गुजर जाए। एक लम्हे को शारिक जुमान को खामोशी की रिदा ने अपने हिसार में लिया था। ओ आई सी, इस बात पर इतना रोना धोना मचा हुआ है। मैं समझा ना जाने ऐसी क्या बात हो गई है जो मोहतरमा ऐसे बिहेव कर रही हैं। ये इतनी सी बात नहीं है शारिक जुमान साहब, साफ मुझको रकेदा जा रहा है, और सिर्फ आपकी वजह से। आज नबील भाई सिर्फ आपकी वजह से मना कर रहे हैं। कल को हर रिश्ता नाता तोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी? आपके लिए ये जरा सी बात है, मेरे लिए मर जाने का मुकाम है। वो शारिक जुमान के नॉर्मल अंदाज पर फौरन चढ़ गई थी। आपने मुझसे वादा किया था सबसे अपने रवैये की माफ़ी मांगने का।
अम्मा, नबील भाई, साजिद भाई वगैरह सब से आपने वादा किया था कि आप अपनी हर गलती कबूल करेंगे, जो कुछ भी कर चुके हैं आप उसकी माफ़ी मांगेंगे। वो हर लिहाज भुलाई नहायत बेमुरवती से गोया थी। शारिक जुमान ने एक गहरा सांस लिया। तो मैं कब इनकारी हूँ मेरी जान। मैं जो कुछ भी कर चुका हूँ मुझे पता है वो किसी भी लिहाज से सुइटेबल नहीं था, मगर तब तुम्हारे हुसूल के लिए मुझे उससे बेहतर कोई हल समझ में नहीं आया था। अगर मैं ये सब न करता तो आज तुम मेरे सामने न होती। तुम मेरी गलतियों पर नजर रखे हुए हो, मेरी मोहब्बत की इंतहा भी तो देखो। तुम्हारे लिए सारे खानदान से टक्कर ली है, गोया मौत के मुंह में हाथ डाला था। तुम्हारी खातिर तो सबसे माफ़ी क्या, पैर भी छूने पड़े तो कर लूँगा, मगर आज नहीं। आज मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। तुम बस तैयार होने की करो। हरी अप यार। तो ठीक है, जब आपके पास फुर्सत हो, वक्त हो, आ जाइएगा। मैं भी चलने को तैयार रहूंगी। नवेरा ने साफ रुखाई से जवाब देते चेहरा भी मोड़ा तो शारिक जुमान का गुस्से से बुरा हाल हुआ। दिमाग खराब है तुम्हारा और कुछ नहीं। नवेरा, यहाँ बात बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल मेरे साथ चलो, हम फिर आ जाएंगे। निहायत तहम्मुल का मुजाहिरा करते उसे समझाना चाहा तो नवेरा ने एकदम बात काट दी। हरगिज़ नहीं, आप चले जाएं। मैं उसी सूरत में आपके साथ जाऊंगी अगर मेरी फैमिली आपको मुआफ़ करती है, वरना नहीं। ख़ास तौर पर नबील भाई, अपने भाई की नज़रों में मेरा जो मुकाम था वो बरकरार रखना होगा आपको, वरना आप मुझे जानते नहीं। अगर मैं आपके घर को आबाद कर सकती हूँ तो हर हद भी क्रॉस कर सकती हूँ। फिर मुझे इल्ज़ाम मत दीजिएगा शारिक साहब। शारिक जुमान ने चंद पल नवेरा के तेवरों से अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी कि वो किस हद तक अपनी बात पर अमल करने वाली है। इसका मतलब है कि तुम आराम से चलने वाली नहीं हो? नहीं, मैं आराम से साथ चली जाऊंगी अगर आपको नबील भाई इस घर में आने की इजाज़त दे दें तो। रो धोकर वो अपने अंदर का गुबार निकाल चुकी थी। अब फिर वही सख्ती लहजे में दराई थी जो शारिक जुमान के लिए उसके दिलो दिमाग में बरकरार थी, जो शारिक जुमान की अनथक मेहनत और मोहब्बत भी ख़त्म न कर पाई थी। ऐसी की तैसी नबील की। नबील अगर इस मामले को बिगाड़ना चाहता है तो बहुत गलत करेगा, और तुम भी कान खोलकर सुन लो। अगर इस मामले को इशू बनाकर तुम नबील या किसी भी थर्ड पर्सन का साथ दोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो क्या करेंगे आप हैं? बोलें, जवाब दें। मैं साथ दूंगी क्योंकि आप गलत थे हैं, और मैं क्यों झुकूं या डरूं? अगर आप मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। मैं इतनी आसानी से सब भूल जाने वाली नहीं हूं। उसने भी दो बदो जवाब दिया था। शारिक जुमान का जब्त से बुरा हाल हुआ। नवेरा, नवेरा, तुम तैयार हो जाओ। इससे पहले कि नवेरा के बेलाचक अंदाज पर शारिक जुमान भी कोई सख्ती करता, खालदा बेगम ने फौरन कमरे में कदम रखा था। दरवाजे के बाहर खड़े होकर दोनों को सुनते उन्होंने दोनों के तेवर भी मुलाहिजा किए थे। अब क्या मुदाखलत नागुज़ीर हो गई थी, सो उन्हें कदम रखना ही पड़े थे। मगर अम्मा, नवेरा उनको देखकर और फिर उनके उस हुक्म पर फौरन चटक गई थी। शारिक, तुम बाहर चलकर बैठो, मैं नवेरा को तैयार करवाती हूँ। उन्होंने नवेरा की बात काटकर शारिक की तरफ रुख करके कहा था। शारिक जुमान गुस्से से नवेरा को देख रहा था। अम्मा के कहने पर कमरे से निकल गया था। अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। तुम दोनों बहन भाइयों ने तय कर लिया है कि मुझे जमाने भर में बेइज्जत करवाओगे। नवेरा के इनकार पर उन्होंने गुस्से से देखा। और जो शारिक जुमान कर चुका है वो तनफुर से गोया हुई। अब तुम उसकी बीवी हो, वो तुम पर हर तरह का हक रखता है और जोर ज़बरदस्ती जब चाहे तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर ले जा सकता है। अम्मा, मैं एक इल्ज़ाम लेकर नहीं जी सकती। दिल पर जबर करके उसे कबूल तो कर सकती हूँ, मगर सारी उम्र उस इल्ज़ाम के साथ नहीं जी सकती जो इल्ज़ाम मुझे नबील भाई दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस शख्स की वजह से। वो फिर रो दी थी। अम्मा ने आगे बढ़कर उसका चेहरा हाथों में थामा। तुम्हें जीना होगा। ये मर्दों का मुआशरा है। यहाँ मर्द सब कुछ करके भी फाहते ठहरता है कि हुक्मरानी उसकी है। नबील तुम्हारी मजबूरी नहीं समझ सकता, उससे अपनी बेइज्जती नहीं भूलती। अब बात सिर्फ तुम्हारी या नबील की नहीं है, दोनों खानदानों की बका की है। वो किस्सा जो हम बड़ी सफाई से छुपा गए थे, लोगों की जुबान पर एक दफ़ा आ गया तो आने वाली नस्लें भी मौरिद इल्ज़ाम ठहरा दी जाएंगी। नवाज ने जो किया वो घाव कम था। बेशक वो शारिक की बात का यकीन करता, मगर एक दफ़ा तुमसे भी पूछता। मगर मर्द के दिल में एक दफ़ा बाल आ जाए तो सारी उम्र नहीं जाता। अच्छा हुआ वो ये ताल्लुक़ ही तोड़ गया। शारिक अपने किए का भुगतान भुगतने को तैयार है तो तुम भी खामोश हो जाओ। मैं नबील को समझा लूँगी। मर्द सब कुछ करके भी अपने आप को हक पर समझता है। शारिक इतनी आसानी से माफ़ी मांगने नहीं मांगला, और अगर वो मांग भी ले तो कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं करेगा और ना ही हमारा नुकसान पूरा होगा। सो मसलहत का तकाजा यही है कि तुम उसकी मर्ज़ी पर अमल करो। अब वही तुम्हारा सब कुछ है। भाइयों की बातों में आकर घर ख़राब करोगी तो हिमाकत करोगी, और मैं जानती हूँ मेरी बेटी कम अकल और अहमक नहीं। समझ रही हो ना?
अम्मा उसे प्यार से आराम कर रही थी। वो बेबसी से उन्हें देखे गई। कहने को बहुत कुछ था, बहुत से अल्फाज, बहुत सी दलीलें, मगर अम्मा के यकीन पर लफ्ज जैसे सिल गए थे। अम्मा की आंखों में मेरी गिरती इज्जत की साख बहाल रहने दो की जो खामोश इल्तिजा थी उसे सख्ती से लब भींच लेने पर मजबूर कर गई थी।